the meeting of seeking the blessings from Almighty Lord Dhanvantari, and I request Dr. Bhavya to please begin with the Dhanvantari Vandana. Dr. Bhavya. ॐ नमो भगवते श्री वासुदेवाय धन्वन्ति अमृतकलशहस्ताय च सर्वामय विनाशनाय च त्रैलोक्यनाथाय श्री महाविष्णवे नमः सर्वरोगविनाशाय श्री महाविष्णवे नमः श्री महाविष्णवे नमः श्री महाविष्णवे नमः। Thank you so much, Dr. Bhavya, for this soulful rendition. Everyone is kindly requested to please mute yourself. To begin with this program, I would like to introduce that Vishwa Parishad has always been very instrumental in contributing to the present and the glorious future of Ayurveda by organization of various seminars, webinars, and meetings, which includes the blessings from stalwarts of Ayurveda. In this month of March 2024 itself, Vishwa Ayurveda Parishad organized two very remarkable and revolutionary meetings, which marked the beginning of new era of transformation in Ayurveda. The Vice Chancellor's meeting on 3rd of March 2024 involved the presence of esteemed Vice Chancellors across the country, while the principals meet that took place on 20th March 2024 witnessed the august presence of honorable directors of many national institutions like All India Institute of Ayurveda, National Institute of Ayurveda, and SDM College. Both the sessions were very enlightening for not only the faculty and stalwarts of Ayurveda, but also the future generations, that is, students of Ayurveda. Today is another monumental day as we are blessed to hear from two legendary personalities of Ayurveda, that is Dr. Rakesh Sharma sir and Dr. Ashutosh Gupta sir, on a very important topic related to new regulations put forth by NCSM. So without further ado, I would like to invite Adarsh Ravi sir to give brief about today's webinar. Namaste all. Am I audible? Hello? Yes, yes. Yes, sir. Namaste everyone. It's a privilege and an honor to be part of this August audience in this webinar. The today's meeting, which is organized by Vishwa Ayurveda Parishad, especially by the Chikitsa Prakoshth, is a very important meeting which mainly deals with the new regulations which have been dated on 29 December 2023 by the Government of India, which mentions on the National Commission for Indian System of Medicine's Ethics and Regulations, Ethics and Registrations Regulations 2023. We know our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji have told on the 2022 Independence Day that for the Amrit Kal, for the next 25 years coming up, the Panchapran, every citizen should take it up. When the Panchapran, one of the important criteria, it was mentioned as the rights of a citizen. As a citizen and as a citizen, we should be aware about the rights and our privileges and our duties as a citizen of our Bharat. So our NCSM, under the leadership of our Dr. Rakesh Sharma ji, who is the president of Board of Ethics and Registration, have came up with the new regulations for the ethics and registrations of Ayush practitioners. So it's our duty and privilege to know about our rights, our ethics, our what are our priorities and our privileges as a citizen of, as an Ayurveda practitioner, or as an in NCA, as an Indian System of Medicine's practitioner. What are the rights and privileges we have? So not only knowing by ourselves, it's important that we should also have the duty to convey to the other doctors and our colleagues, so that everyone get aware about it, and then only the process and then only the vision of our Board of Ethics and Registration and under our Dr. Rakesh Sharma sir will be successful.
So in the when we are going for the 2047 Amrit Kal as a practitioners, this dissemination of this regulation, we should take it as a challenge and we should take it as a duty of ourselves, and we should give priority for that. This webinar will be priorly dealt with this regulations by the new regulations by the NCASM. So I further invite our Dr. Surendra Chaudhary ji to address and to give up more light on this. Aishwarya ji. I would now like to request Professor Govind Sahaya Sukla sir, a National President of Vishwa Ayurved Parishad, for a welcome address and brief intro of Vishwa Ayurved Parishad. यत् प्रभा पट्लोद्भाषी भाषते अद्यापि भारतम आयुर्वेदात्मकम ज्योति ही शाश्वतम न प्रकाशिताम। आज के इस महत्वपूर्ण वर्चुअल प्रोग्राम में उपस्थित हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वैद्य राकेश जी शर्मा, प्रेसिडेंट बोर्ड ऑफ एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन NCSM, गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर आशुतोष जी गुप्ता, कोऑर्डिनेटर एथिक्स कमेटी ऑफ एक्सपर्ट, हमारे सभी केंद्रीय पदाधिकारी और सभी देश भर से जुड़े हुए चिकित्सक महानुभाव, मैं सबसे पहले आज के हमारे मुख्य अतिथि वैद्य राकेश जी, जो अपनी आयुर्वेद की मर्मज्ञता के संबंध में तो मैं उनको जानता ही हूं, लेकिन अपनी अद्भुत प्रशासनिक क्षमताओं और अपने निर्णय लेने की क्षमताओं के रूप में उनकी विशिष्टता है। जब से NCSM में आपने इस बोर्ड को संभाला है, आए दिन चिकित्सकों से जुड़े हुए, प्रैक्टिशनर से जुड़े हुए ऐसे महत्वपूर्ण विषय, उन पर आपका ध्यानाकर्षण होता रहा है। अभी जस्ट जो हमारा गजट नोटिफिकेशन रिसेंटली हुआ है, तो आपका ये कहना भी था, आज विश्व आयुर्वेद परिषद देश के अंदर, संपूर्ण देश के अंदर एक प्रभावी संगठन है। हर प्रदेश के अंदर हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। 15,000 से भी अधिक मेंबर्स पूरे देश भर में हैं, और वो मेंबर्स सभी क्षेत्र में है, चाहे वो शिक्षकों के बीच में है, विद्यार्थियों के बीच में है, निर्माताओं के बीच में है, चाहे चिकित्सकों के बीच में है। चिकित्सकों से जुड़ा हुआ ये महत्वपूर्ण विषय चिकित्सकों तक बहुत एक ठीक ढंग से पहुंचना चाहिए। तो इस विषय को जब आपने परिषद के सामने रखा, तो परिषद ने इस विषय को बहुत ही गंभीरता से लिया, और उस पर हमने सबसे पहले यही आपका आग्रह किया कि आज अपने इस रेगुलेशन से जुड़े हुए जो भी अपना नोटिफिकेशन है, उसके माध्यम से जितने भी जो विषय हैं, जिन पर आप हम सबके बीच में अपने विषय को रखेंगे, आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से तो है ही, लेकिन हम स्टेट लेवल पर भी फिजिकली अपनी प्रत्यक्ष जो है डॉक्टर्स की एक संगोष्ठी करेंगे, उनके माध्यम से जुड़े विषयों को जाएं। तो आज राकेश जी ने हमारे परिषद के इस प्लेटफॉर्म पर अपना समय दिया, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आशुतोष जी से हमारा बहुत जुड़ाव है, और मैंने जब कहा कि बहुत दिनों बाद में, या मैं तो कहता हूं कि पहली बार ही मैं इस कार्यक्रम में परिषद के मैं आपको इस माध्यम से देख रहा हूं, तो उनका सीधा सा जवाब था कि जब भी आप याद करेंगे मैं वहीं पर हाजिर रहूंगा। तो मैं आशुतोष जी का भी पूरे विश्व आयुर्वेद परिषद परिवार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। संपूर्ण केंद्रीय पदाधिकारियों का अभिनंदन करता हूं, साथ ही हमारे चिकित्सक प्रकोष्ठ, उसके इस कार्यक्रम के जो सूत्रधार थे, सुरेंद्र जी, सुरेश जी जकोटिया जी, वाइस मलिक जी, PS पांडे जी, चौहान साहब, सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में देश भर से लगभग, जैसा मैं देख पा रहा हूं, लगभग 140 के करीब चिकित्सक अभी जुड़े हुए हैं। उन सभी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा कि आपकी जानकारी में है, 1997 में 5 मनीषियों के माध्यम से काशी में विश्व आयुर्वेद परिषद की संकल्पना की, और उस संकल्पना के पीछे एक मूल जो भाव था, वो यह था कि वैश्विक स्तर पर जितनी भी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उनका मंथन करते हुए उन्होंने कहा, यदि समग्र स्वास्थ्य प्राप्त करना है, तो समग्र स्वास्थ्य प्राप्त करने के मार्ग, रास्ता यदि कहीं निकलता है,
तो वो आयुर्वेद की चिकित्सा और आयुर्वेद के सिद्धांतों से निकल सकता है। शतायु जीवन की संकल्पना यदि कहीं से प्राप्त हो सकती है तो वो आयुर्वेद के सिद्धांतों से हो सकती है। अगर विशुद्ध निरापद चिकित्सा प्राप्ति करनी है तो वो भी आयुर्वेद के चिकित्सा सिद्धांतों से ही हो सकती है। प्रयोगे समेत व्याधिम यो अन्यो अन्नम उदीरयेत नासौ विशुद्धः शुद्धस्तु समेत न कोपीत। इस भाव को लेकर के जिस पांच मनीषियों के माध्यम से उनके विचार से जो प्रादुर्भाव हुआ विश्व आयुर्वेद परिषद का, आज पूरे देश भर के अंदर हजारों की संख्या में बिल्कुल निष्काम भाव से मैं कह सकता हूं, देश भर के अंदर अपना समय दे रहे हैं, अपना व्यय कर रहे हैं और पूरे देश भर में आयुर्वेद का प्रचार प्रसार, और जिस क्षेत्र में भी आज परिषद को लगता है कि आयुर्वेद के इस क्षेत्र में हमें काम करना है, हम उसी क्षेत्र को लेकर के काम करते हैं। अभी पिछले संदिग्ध द्रव्यों को लेकर के एक विचार जब आया तो सीसीआरएस के साथ में उस दिशा में बढ़कर के हमने काम किया। विद्यार्थियों के माध्यम से कैसे विद्यार्थियों का एक अच्छे चिकित्सक और आत्मविश्वास के साथ में वो अच्छे चिकित्सक बन सके, तो हम सरकारें अपने स्तर पर कार्य कर रही है, लेकिन परिषद अपनी क्षमता के आधार पर अपनी शक्ति से हम कितना सहयोग कर सकते हैं, कितना काम कर सकते हैं, इस भाव को लेकर के काम करने वाले अनेक कार्यकर्ता काम में लगे हुए हैं। विद्यार्थियों के बीच में, शिक्षकों के बीच में, चिकित्सकों के बीच में अनुसंधान प्रकोष्ठ के माध्यम से आज के परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार के शोध की आवश्यकता है, किस प्रकार का शोध होना चाहिए। देश भर के अंदर हजारों पांडुलिपियां, हजारों की संख्या में पांडुलिपियां मंदिरों में, मठों में, राजा महाराजाओं के संग्रहालयों में, उन पांडुलिपियों को लेकर के उनको कैसे हम प्रकाश में ला सकते हैं, ऐसे विषयों को लेकर के अनुसंधान प्रकोष्ठ पूरे देश भर में काम कर रहा है। निर्माता प्रकोष्ठ से जुड़ी समस्याओं को लेकर के महिला प्रकोष्ठ, और जब लगता है कि अब देश भर हमने अपना एक विशेष संभाषा कार्यक्रम प्रारंभ किया, 14 विषयों को लेकर के देश भर में जो तज्ञ विद्वान है, जिनके नाम छात्र सुनते हैं, उनको एक मंच पर ला करके उनके जीवन के अनुभवों को और उनके विचारों को उनकी दृष्टि से कैसे अपना दृष्टिकोण अपने छात्र बना सकते हैं, इस प्रकार का विद्यार्थी शिक्षकों के लिए कार्यक्रम करना, विशेषज्ञों के माध्यम से उनके जीवन के कैसे अनुभव हैं, वो कैसा विचार करते हैं, उस विचार को लेकर के कुलगुरु संभाषा, शिक्षकों की संभाषा, ऐसे विविध प्रकार के कार्यक्रम परिषद के माध्यम से देश भर में संचालित हो रहे हैं, चाहे केंद्रीय स्तर पर हैं, प्रदेश के स्तर पर हैं, खंड स्तर पर हैं। समग्र रूप से ऐसे कार्य चलते रहते हैं। चिकित्सक प्रकोष्ठ के माध्यम से सेवा प्रकल्प और विद्यार्थियों में व्यक्तित्व विकास निर्माण, 7 दिन का पूरी तरह से आवासीय कार्य, कैसे उन बच्चों को रख करके 7 दिन तक उनमें एक अच्छे चिकित्सक के साथ साथ में कैसे व्यक्तित्व का विकास हो, इस विषय को लेकर के कार्यक्रम करना। सेवा प्रकल्प के माध्यम से जहां जहां भी अपनी क्षमताओं से, अपने चिकित्सकों से सहयोग लेकर के, समाज का सहयोग लेकर के, जहां दूरस्थ व्यक्ति है, अंत्योदय है, वहां तक भी जाकर के हम अपनी कैसी चिकित्साएं दे सकते हैं। मेरा जब अभी एक वरिष्ठ सज्जन से मेरा मिलना हुआ, उन्होंने कहा कि अब आपको लग रहा है कि वेस्टर्न मेडिसिन से लोग आयुर्वेद की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपको देखना होगा कि वो वहां से उधर क्यों मूव कर रहे हैं, कौन से ऐसे कारण हैं जिनके कारण, चाहे वहां की औषधियों में निरापत्ता ना हो, हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन फ्री मेडिसिन है, तो ऐसे उन कारणों को, या महंगी औषधि हो सकती हैं, जो भी कारण हैं, उन कारणों को लेकर के खोज करके ऐसे आयुर्वेद को कैसे हम चिकित्सा में प्रभावी बना सकते हैं, ऐसा उनका विषय था। उन्होंने 2-3 विषय रखे कि आयुर्वेद के पास में ऐसा ही नहीं, रसौषधियां महत्वपूर्ण है, क्षिप्रम मारोगदायिता तो दिव्य अधिको रस है, तो उन रसौषधियों के संदर्भ में जो एक व्यापक प्रचार है कि भाई रसौषधियां किस प्रकार से हार्मफुल भी हो सकती है प्रभाव के साथ में, तो ऐसे कौन से कारण है निर्माताओं के क्षेत्र में, चाहे चिकित्सकों के दृष्टिकोण से एक श्रेष्ठ रसौषधियों का निर्माण करना, एक चिकित्सक का प्रिस्क्रिप्शन कैसे छोटा प्रिस्क्रिप्शन हो सकता है, क्योंकि आयुर्वेदिक औषधि पर ही आधारित तो चिकित्सा पद्धति नहीं है। यहाँ पर तो जब आज की परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि 90% बीमारियां तो लाइफ स्टाइल से हो रही है, मनोभाव से हो रही है, और मनोभाव के दृष्टिकोण में धी धैर्य आत्मादि विज्ञान मनोदोष औषधम परम, ऐसी जो विषय है, उन विषयों को लेकर के आहार से संबंधित हो सकते हैं, विहार से संबंधित हो सकते हैं, सत्वावजय से संबंधित हो सकते हैं, गर्म पानी का भी प्रयोग है, अष्टमेनान से चतुर्थे नर्थ के अथवा पीतम उष्णोदकम निशि श्लेष मामबात मेदुग्नम वस्तु। हम बहुत से चिकित्सक मिलते हैं, वो चिकित्सक कहते हैं कि मैंने चिकित्सा में अपनी औषधियों का प्रयोग कम किया, लेकिन काल भोजनम आरोग्य करणाम श्रेष्ठ है, इस सिद्धांत के अनुसार ही मैंने उसका डाइट का शेड्यूल बनाया, खान पान का जो शेड्यूल था उसको मैंने सुनिश्चित किया,
और उससे व्याधि में उसके बहुत चमत्कारिक और परिणामकारी परिणाम मिले हैं। तो कैसे हमारे चिकित्सा का जो थैला है वो छोटा होकर के और जो दूसरे सिद्धांत हैं उनको भी कैसे हम प्रभावी रूप से ले सकते हैं। तो एक अद्भुत चिकित्सा पद्धति उसको प्रचार प्रसार करके और सेवा प्रकल्पों के माध्यम से जो हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम चलता है, जन जागरूकता प्रोग्राम चलता है, तो आयुर्वेद के सिद्धांतों को लेकर के ही उस प्रकल्प पर काम करते हैं। साथ ही आज का जो महत्वपूर्ण विषय है, अभी जो नोटिफिकेशन हुआ है उसके रूल्स रेगुलेशंस को लेकर के वो निश्चित रूप से वैधानिक दृष्टिकोण से, एथिकल दृष्टिकोण से चिकित्सकों के बीच में जाना चाहिए, प्रभावी रूप से जाना चाहिए, प्रत्येक चिकित्सक तक पहुंचना चाहिए। जो राकेश जी और उनकी टीम के द्वारा जो अद्भुत प्रयास किया गया है, उस प्रकार प्रयास के परिणाम, सकारात्मक परिणाम हमारे माध्यम से मिलेंगे, तो वहां तक पहुंचना चाहिए। तो ये परिषद की कुछ एक संक्षिप्त जानकारी के साथ में मैं पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद सर। अभी ज्यादा विलंब न करते हुए मैं आज के सम्माननीय वक्ता वैद्य राकेश शर्मा सर का स्वागत तथा परिचय करने हेतु चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रभारी वैद्य सुरेश जाकोतिया सर को आमंत्रित करते हूँ। सभी को नमस्कार। जय धन्वंतरी। वैद्य प्रोफेसर राकेश शर्मा जी, MD PhD और प्रेसिडेंट एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन बोर्ड NCISM न्यू दिल्ली से हम आते हैं। साहब पहले एक्स प्रोफेसर गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज पटियाला डिपार्टमेंट ऑफ काय चिकित्सा में कार्यरत थे। उसी प्रकार साहब पहले एक्स डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा पंजाब से अपना सर्विस दिए हैं साहब। और एक्स डीन गुरु गोविंद आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी पंजाब होशियारपुर से भी अपना दायित्व काम करके प्रजा में अपना सेवाएं दिए सो है। और आखिरी में साहब एक्स चेयरमैन आयुर्वेदा एंड यूनानी रजिस्ट्रेशन बोर्ड पंजाब मोहाली से भी अपना परिचय दिए सो है, पूरे समाज में उनकी सेवाएं दिए सो है। मैं प्रोफेसर वैद्य राकेश शर्मा जी MD PhD से आग्रह करता हूं कि हमारे जो चिकित्सा प्रकोष्ठ के वैद्य लोग हैं उनको अपना संदेश दीजिए। नमस्कार। भाई साहब अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। यद प्रभापटलोदि भाषते भाष्यत्यति भारतम आयुर्वेदात्मकं ज्योतिषाश्वतं प्रकाशताम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे गुरु परम्परां ब्रह्मणो हि समारब्धं मात्रयादेशभूषताम्। श्रद्धे योगेश मिश्रा जी, विश्व आयुर्वेद परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय गोविंद साहेब शुक्ला जी, विश्व आयुर्वेद परिषद के महामंत्री आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी जी, गोपाल मेहता जी, डॉक्टर महेश व्यास जी, उपस्थित सभी विद्वत वृंद, मैं सबसे पहले आपसे ये बताना चाहता हूँ कि हमने एक स्टेक होल्डर्स की विभिन्न संगठनों की मीटिंग दिल्ली में 13 मार्च को रखी थी और उसमें लगभग 38 प्रतिनिधि जो भारतवर्ष से आए हुए थे। लेकिन उन सब में क्योंकि कुछ लोग तैयारी करके आते हैं, उनमें मैं डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी जी का विशेष करके धन्यवाद करता हूँ। वो पूरा हमारा रेगुलेशन पढ़ के आए थे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि एक फॉर्म डी की गलती निकाली थी, वो गलती जबकि प्रिंटिंग प्रेस से हुई थी जिसका कॉरिजेंडम निकलना था, तो उससे मैं समझ गया कि चौधरी जी बहुत ऑनेस्टली पूरा रेगुलेशन पढ़ के आए हैं। इसलिए चौधरी जी सच में हृदय से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। ये जो रेगुलेशन है ये चिकित्सकों के लिए बना है। जो भी रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर है, यानी जिसको लाइसेंस मिल गया है, वो इसके अंतर्गत समाहित होता है, चाहे वो प्रशासक है, चाहे वो रिसर्चर है, चाहे वो शिक्षक है, चाहे वो इंटर्न है। इंटर्नशिप से लेकर के अपने अंतिम जीवन पर्यंत के वैद्य के लिए, हकीम के लिए, सिद्धा और सुवारिकपा के जो चिकित्सक उन सभी के लिए ये बना। थोड़ी सी भूमिका बता दूं क्योंकि यहाँ आशुतोष जी हुए हैं, को लॉ डिपार्टमेंट से पास करने के लिए लगभग सवा साल लगा। बाकी सारे जितने भी बोर्ड है उनके रेगुलेशन 3 महीने में, 4 महीने में, मैक्सिमम बहुत जोर लगाया तो 5 महीने में वो पास हो जाते थे।
लेकिन बार बार उन्होंने डिफर कर दिया मेरी बात को। और एक बार आशुतोष जी और नागपुर के हमारे मित्र थे, वो हम सब साथ में गए तो उनको सब समझा के आए, लेकिन बार बार कहाँ नागपुर से आया जाता है, तो मैं और मेरे डिपार्टमेंट के अधिकारी जाते। और हमने फिर लास्ट में मैंने ये सोच ली कि जो मैंने बनाया है इसमें से एक भी लाइन काटूंगा नहीं, जो बना दिया बना दिया। और मैं आपसे यानी इस रेगुलेशन के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक अध्यापक रहा तो मुझे अपने विद्यार्थियों की व्यथा का पता है, और मैं भी प्रशासक रहा तो मुझे अपनी स्वयं की भी व्यथा का बड़ा दुख था, दर्द था। इसलिए मैंने मेरा कोई बच्चा आयुर्वेद में नहीं डाला। मुझे कोई भी ब्यूरोक्रेट आईएएस ऑफिसर, क्योंकि मेरी फाइलें आईएएस अफसरों के पास जाती थी, उनसे सुनना पड़ता था, अच्छा आयुर्वेद में सर्जरी भी होती है, अच्छा गायनी आप डिलीवरी भी करा सकते हैं, अच्छा आपसे ये बीमारी ठीक हो जाती है। लेकिन जो एक राजनीतिक व्यक्ति है वो कुछ भी बोल सकता है, जो सरकारी नौकरी में है उनको बोलने में जितना संयम से बोलेंगे या नहीं उत्तर देंगे उतना ज्यादा अच्छा रहता है। तो इसलिए सुन सुन के ऐसा लगता था यार क्या ये आयुर्वेद भारत की अपनी चिकित्सा पद्धति है, और भारत के लोगों को इसने आज पर्यंत ब्रह्मा जी से लेके आज पर्यंत जो है स्वास्थ्य और रोगों को निवारण के लिए जो है चिकित्सा प्रदान की है, और उसके सिद्धांत उनके प्रतिपादन से आप सब जानते हैं। तो इसके पीछे भूमिका रही, और उसमें सबसे बड़ी भूमिका मैं और स्पष्ट कर दूं, जयंत देव पुजारी जी चूंकि चिकित्सक हैं, वो बेसिकली प्रैक्टिशनर हैं और बोलते भी हैं कि मैं प्रैक्टिशनर हूं, उनको भी जो अपनी प्रैक्टिस में व्यथाएं आई जिनको उन्होंने फेस किया, ऐसी बहुत सारी चीजों को डॉक्टर साहब ने इसमें इंक्लूड कराया, जिससे हमारा जो चिकित्सक है चाहे सरकारी स्तर का है चाहे निजी व्यावसायिक है, तो उसको का पूरा बेनिफिट मिले। मुझे अच्छे से याद है कि महाराष्ट्र में एक ऐसी छोटी सी स्थिति पैदा कर देते हैं कि आयुर्वेद का जो डॉक्टर है अपना नर्सिंग होम नहीं खोल सकता, तो हमने उसको रेगुलेशन में ही डाल दिया कि हमारा जो आईएसएम प्रैक्टिशनर है वो किसी भी नर्सिंग होम का, सर्जिकल होम का और बाहर से डॉक्टर रख करके अपना नर्सिंग होम चला सकता है। तो उसको भी मैंने बेट कराने में हमें थोड़ी मुश्किल आई, लेकिन बेट हो गया और इसके अंतर्गत है, एक उदाहरण दिया। अब मैं बताता हूं कि हम अष्टांग आयुर्वेद पढ़ते हैं कि अष्टांग आयुर्वेद के काय बाल ग्रह ऊर्ध्व जरा दृष्टा अगध, ऐसे 8 अंग जो है बताएं, और इसकी अगर हमें डिफिनेशन करनी पड़ती है किसी ऑनरेबल कोर्ट के सामने तो हमें बड़ा मुश्किल होता था अपने इन 8 अंगों को बताने के लिए। इसलिए हमने इस रेगुलेशन में, और मेरे इस यानी ये बोर्ड ऑफ एथिक्स रजिस्ट्रेशन के रेगुलेशन से पहले बोर्ड ऑफ आयुर्वेदा ने ये डेफिनेशन जो है आयुर्वेद की दी, जिससे कि काफी कुछ जो है आज के विद्यार्थी को सुविधाजनक हो जाएगा, आज के चिकित्सक को सुविधाजनक हो जाएगा, और उसके हिसाब से वह बड़े आराम से अपनी प्रैक्टिस कर सकेगा और अपनी विद्या को आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छे से जो है एक्सप्लेन कर सकेगा। जैसे काय चिकित्सा के लिए इंटू ब्रैकेट हमने लिखा सामान्य एवं आंतरिक चिकित्सा, शल्य तंत्र सर्जरी, शालाक्य तंत्र नेत्र विज्ञान, ऑटोराइनो लेरिंगोलॉजी और मुख दंत चिकित्सा, कुमार वृत्त में ऑब्स्टेटिक्स, गायनिकोलॉजी और पीडियाट्रिक्स, ये कुमार वृत्त में डाल दिया है। अगर तंत्र में क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी, फोरेंसिक मेडिसिन, मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, भूत विद्या में क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी एवं वायरोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड साइकेट्रिक, रसायन में प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, रीजेनरेटिव मेडिसिन एंड जीरोंटोलॉजी, और वाजीकरण में रिप्रोडक्टिव मेडिसिन और एपिजेनेटिक्स। ये आधुनिक युग में, इसके वर्तमान युग में हमें इस तरह की डेफिनेशन बनाने की इसलिए आवश्यकता पड़ी कि मेरे अपने प्रशासनिक काल में भी मुझे बहुत बार ऑनरेबल हाई कोर्ट में बहुत सारे जो है वो जवाब देने पड़ते थे, तो मैं एक्सप्लेन करता था हमारे सिलेबस को लेकर के, लेकिन जो चिकित्सक या जिस व्यवसायी के कारण वो हाई कोर्ट में कोर्ट केस जाता था उसको डेफिनेशन तक पता नहीं होती थी। तो इस रेगुलेशन में हमने ये जो है डेफिनेशन को बड़ा डिटेल में एलेबोरेट कर करके सारी चीजों को जिससे कवर हो जाए उसके हिसाब से हमने इसको डेफिनेशन को लिखा। सेम बाकी की जो डेफिनेशंस हैं वो सिद्धा की है, सवरिपा की है और यूनानी की है, और बाकी बोर्ड किसको कहते हैं। अब पूरे हिंदुस्तान भर में जो बोर्ड शब्द है वो केवल नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बोर्ड ऑफ एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन के लिए यूज होगा। भारतवर्ष के जितने भी पंजीकृत कार्यालय हैं उन सब के लिए स्टेट मेडिकल काउंसिल ये होगा। ऐसा एक्ट में एनसीआईएसएम एक्ट 2020 में लिखा है, और उन्होंने लिखा है कि 3 साल में आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है। और जहां पे ये काउंसिल्स नहीं है
वहां पे काउंसिल्स इस्टेब्लिश करनी है। तो अब तक छत्तीसगढ़ में हो गया है, और बाकी जो स्टेट्स हैं, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, पंजाब है, और भी ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे आज भी बोर्ड शब्द चलता है। तो वहाँ के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज के साथ हमारी जो है बड़ी डिटेल करस्पॉन्डेंस चल रही है। दूसरा, ये इस रेगुलेशन में एक शब्द आ गया है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। देखिए, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जब भी कोई पोस्ट किसी मेडिकल या हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट को छोड़कर कोई दूसरा डिपार्टमेंट जब पोस्ट की विज्ञापन देता था, तो वो लिखता था रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर अंडर एक्ट 1956। वैसे तो 1956 रिपील्ड हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से केवल पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति के डॉक्टरों को ही समझा जाता था। तो ये भी हमारे बड़ी व्यथा थी कि हम रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के अदारे में नहीं आते हैं। तो उसके लिए हमने इसको रेगुलेशन में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर करके लिखा, और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में इसकी अमेंडमेंट भी हुई, और इसको अब हम रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑफ ISM, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ऐसा करके जो है इसके अंदर इंक्लूजन हो गया है। और इसके बाद एक कई बार, जैसे मध्य प्रदेश के अभी मेरे पास काफी लेटर थे कि हम प्रीफिक्स में डॉक्टर नहीं लिखने देते हमें, हम डॉक्टर नहीं लिख सकते। चलो, डॉक्टर लिखना नहीं लिखना ये एक बहुत अलग विषय है, कोई वैद्य लिखे, कोई हकीम लिखे, कोई डॉक्टर लिखे। तो हमने उनको, उनकी गवर्नमेंट को, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को लेटर लिखे कि ये डॉक्टर भी लिख सकते हैं, वैद्य भी लिख सकते हैं। और उसके हमने 2003 के फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसका नोटिफिकेशन भेजा और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भेजा। और उसके बाद ये भी हमें लगा कि इसको भी परमानेंटली खत्म करना चाहिए, कि हमें कोई कल क्वेश्चन मार्क करे कि आप डॉक्टर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, हम कुछ भी लिख सकते हैं। इसलिए हमने उसको भी प्रीफिक्स में हम डॉक्टर लिख सकते हैं, हकीम लिख सकते हैं, वैद्य लिख सकते हैं, इसको हमने इस हमारे जो ये अपना रेगुलेशन है इसमें क्लियर कर दिया। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो चिकित्सक हैं उनको एक बड़ा मन में जो भाव है, अच्छा भाव प्राप्त होगा। नहीं तो कोई भी पूछ लेता है कि आप डॉक्टर कैसे लगाते हो। मुझे और किस्सा याद है कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री में एक कंसल्टेंट लड़की नेहा जैन काम करती थी, उसने डॉक्टर लगा लिया, तो वहां जो IAS ऑफिसर थे उन्होंने उसको लिखने से मना कर दिया। तो हमने उसको भी वो लेटर दिया कि आप डॉक्टर लिख सकती हैं। वो IAS ऑफिसर का मैं नाम नहीं कोट करता, वो MD मेडिसिन थे। तो बोले आप ये डॉक्टर नहीं लगाएंगी, आप कंसल्टेंट हैं। और तो उसको हमने जब लेटर दिया, उसने भी डॉक्टर लगाना शुरू कर दिया। यानी छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से हमारा जो व्यवसायिक है बड़ा अपमानित महसूस करता है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हमने जो है बड़ी ध्यान में रखी हैं। अब ये डेफिनेशंस के बाद मेरी एक रिक्वेस्ट है कि एक इसमें इम्पोर्टेंट जो चैप्टर 2 है हमारा, गाइडलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन टू स्टेट रजिस्टर एंड नेशनल रजिस्टर। अब इनिशियल जो, अब क्योंकि ये जो एक्ट है इसको लगभग 3 साल और कुछ महीने पूरे हो चुके हैं, इसलिए उस एक्ट में लिखा है कि 3 साल पूरे होने तक जो भी भविष्य में पास होने वाला इंटर्नशिप कंप्लीट करने वाला इंटर्न है, उसको फाइनल जो रजिस्ट्रेशन देना है वो तभी देना है जब नेशनल एग्जिट टेस्ट को पास कर ले। तो इसमें हमने लिख दिया, द पर्सन हु क्वालिफाई नेशनल एग्जिट टेस्ट एज हेल्ड अंडर सेक्शन 15 ऑफ द एक्ट shall be eligible to register in the state register and national register। इसका अभिप्राय है कि 2024 से लगभग इंटर्नशिप कंप्लीशन के 9 महीने बाद ये टेस्ट होगा, और टेस्ट होने के बाद जो बच्चा पास हो जाएगा उस विद्यार्थी को जो है रजिस्ट्रेशन मिलेगा। जो पास नहीं होगा वो अपनी इंटर्नशिप तो जरूर कंप्लीट कर लेगा, उसको डिग्री भी जरूर मिल जाएगी, लेकिन उसको प्रैक्टिस का लाइसेंस नहीं मिलेगा। इसके लिए अनलिमिटेड चांस रहेंगे, और इसकी जो परीक्षा है कोई यूनिवर्सिटी नहीं लेगी, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन इसकी परीक्षा कंडक्ट कराएगा। और उसके लिए स्पेशल एग्जामिनेशन बोर्ड जो है नेशनल कमीशन ने अपना इस्टेब्लिश किया है, जिससे कॉलेज के अध्ययन और अध्यापन का स्तर सुधरेगा। और ये इसलिए नेशनल एग्जिट टेस्ट जो है इंडियन रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स के लिए, और जो फॉरेन रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है और नेपाल है, यहाँ पे आयुर्वेदिक कॉलेजेस हैं, तो यहाँ के लोग अगर भारत में आकर के चिकित्सा करना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, तो उनको भी नेशनल एग्जिट टेस्ट जो है ये देना पड़ेगा। और एक और छोटी सी ये रिक्वेस्ट है कि
लोगों को एक पूरी पुराने जो सीसीएम थी उसके काल में एक भ्रांति थी कि जिसने सेंट्रल रजिस्ट्रेशन करा लिया उसको फिर उसके पश्चात कोई दूसरे रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है और नेशनल सेंट्रल रजिस्ट्रेशन के बाद वो कहीं भी चिकित्सा कर सकता है। मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगा। जो NCISM एक्ट है इसमें कहीं भी ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है और जो हेल्थ है ये स्टेट सब्जेक्ट होता है, इसलिए इसको हमने बड़ा स्पष्ट किया है। नेशनल रजिस्टर इज मेंटेन्ड बाय बोर्ड ऑफ एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन, which information we will get from the state, that information will only put in the national registration या register। तो जो भी स्टेट हमें भेजेगी उसके अलावा हमने कुछ भी इसमें इंक्लूड नहीं करना और हमने किसी को भी ये कहना नहीं है, यानी बोर्ड ऑफ एथिक्स रजिस्ट्रेशन किसी से भी कहेगा नहीं कि आप इसका प्रमाण पत्र लें या आप इसका सर्टिफिकेट बनवाएं। ये आपको बड़ा जरूरी है। जिसको चाहिए नेशनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए फिलहाल जो फीस है 3000 है, ये पुरानी सीसीएम की निश्चित की हुई फीस है और ऑनलाइन इसको हमने शुरू नहीं किया है। और जो पुराने सीसीएम ने पैसे लिए हुए हैं उनके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो हैं हम इशू कर रहे हैं और इसी चैप्टर में डिफरेंट फॉर्म दिए हुए हैं ABCDEF ऐसे फॉर्म्स हैं और इन फॉर्म से जो है भर करके हम जो है रजिस्ट्रेशन की डिफरेंट जो विधाएं हैं उसका हम उपयोग कर सकते हैं। और जो एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आज हमारे देश में बहुत सारे रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स हैं और बहुत सारी विद्याओं के रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर हैं, लेकिन इस एक्ट में बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि जो इस एक्ट की धारा 35 और 36 के तहत क्वालिफाइड होगा वही जो है रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर कहलाएगा। और इसके अलावा जो भूतपूर्व CCIM है उसके सेकंड शेड्यूल, थर्ड और फोर्थ शेड्यूल में जो भी रजिस्टर्ड होगा उसको भी जो है रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर कहा जाएगा। एक बात सबसे मैं निवेदन कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट का एक 2007 का ऑर्डर है जिसमें उन्होंने कहा है कि 67 के बाद हिंदी साहित्य सम्मेलन की कोई भी जो विधा है उनके द्वारा प्रदत्त कोई भी डिग्री है उसको हम मान्य नहीं करते हैं। इसलिए हमने सभी राज्यों से कहा है कि आप जो है आदरणीय सुप्रीम कोर्ट और CCIM ने उसके परिप्रेक्ष्य में 2010 में पत्र PR शर्मा के हस्ताक्षर से निकाला है। तो इसलिए इस तरह की जो डिग्रियां हैं, इस तरह की जो योग्यताएं हैं उसको जो है इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। जो डिग्रियां स्कूल में इंक्लूडेड हैं और बेशक वो फैकल्टी से दी गई हैं, चाहे वो विश्वविद्यालय से दी गई हैं या जो बहुत रियासत के टाइम की डिग्रियां भी हैं या प्रमाण पत्र भी हैं, वो भी सारे इसके अंदर इंक्लूड होंगे। अब इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है वो जो है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, प्रोविजनल एंड टेम्पररी रजिस्ट्रेशन। तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो कि इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद जो रजिस्ट्रेशन होगा वो 5 साल के लिए जो है वो रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा और 5 साल के बाद जो है उसको रिन्यूअल कराना पड़ेगा। और रिन्यूअल तब होगा जब इन बिटवीन 5 साल के बीच में उसने CME से कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन में 50 पॉइंट ले लिए हैं, उसके बाद ही जो है उसका रजिस्ट्रेशन रिन्यू होगा। और ये जो CME कंडक्ट करानी है ये स्टेट मेडिकल काउंसिल ने बोर्ड ऑफ एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन की परमिशन से और नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की परमिशन से इसको उसने जो है स्टेट ने ऑर्गेनाइजेशंस भी कर सकती हैं, लेकिन उसमें ऑब्जर्वर जो है बोर्ड ऑफ एथिक्स रजिस्ट्रेशन से भी रहेगा और स्टेट मेडिकल काउंसिल से भी रहेगा। और ये बड़ा स्ट्रिक्ट इसको जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा। रिसोर्स पर्सन जो है उनको हम लिस्टेड करेंगे और उनकी जो लिस्ट है स्टेट मेडिकल काउंसिल्स को भी भेजेंगे और हम अपने पास भी रखेंगे। और जो बड़ी वेल नोन ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि कई बार जैसे कर्नाटक स्टेट है वहाँ हर साल 5000 रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर जो है रजिस्टर्ड होते हैं। तो आज की तारीख में वहाँ की जो संख्या लगभग 60,000 है, महाराष्ट्र की 1,11,000 है, मध्य प्रदेश में वर्तमान में 60,000 हैं, उत्तर प्रदेश में लगभग 38,000 हैं। तो स्टेट्स में जहाँ ज्यादा कॉलेजेस हैं वहाँ पे रिन्यूअल भी ज्यादा होंगे। इसलिए रिन्यूअल करने के पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन में क्या क्या कंपोनेंट आएंगे, क्योंकि ये सारा जितना जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरे से भी ज्यादा अच्छा आशुतोष जी जानते हैं, तो उसके कंपोनेंट्स को बताएंगे। फिलहाल इसमें हमने कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन के जो कंपोनेंट है
उनको मार्क्स से बाइफरकेट नहीं किया है, लेकिन 3 तारीख को रजिस्ट्रार्स की मीटिंग है, तो उसमें हम सारी गाइडलाइन जारी कर देंगे कि कॉन्फ्रेंस के कितने नंबर मिलेंगे, वर्कशॉप के कितने मार्क्स होंगे, इसी तरह से कितने मार्क्स होंगे, और पेपर प्रेजेंटेशन के कितने मार्क्स होंगे, और 4-5 कंपोनेंट है, तो इनके 5-5 10-10 नंबर होंगे, तो 5 साल में 10 नंबर, या जब जो ऑथराइज्ड सीएमई है वो चाहे वो आप 4 महीने में पूरी कर लो, 5 महीने में पूरी कर लो, उससे कुछ कमीशन का और बोर्ड का कोई ये नहीं है कि आपने कंटिन्यूशन में ही करना है। मुझे लगता है भाई साहब का नेटवर्क गड़बड़ हो गया है, तो ऐश्वर्या जी आशुतोष जी को ले लेते हैं, और राकेश जी दोबारा जुड़ जाएंगे तो उनको फिर से बुला लेंगे। जी सर, मैं वैद्य वायस मलिक सर से अनुरोध करती हूँ कि आज के दूसरे सम्माननीय वक्ता वैद्य आशुतोष गुप्ता सर का परिचय उपस्थित करें। I am audible. जी हेलो। यस सर। सभी को नमस्कार। We feel very pleasure and मैं क्षमा चाहता हूँ कि ये बीच में थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था। जी जी प्लीज कंटिन्यू करें। सॉरी। तो सर ये जो कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन है, कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन के जो मार्क्स हैं, ये हम 3 तारीख को इसको डिटेल में सर आपको बता देंगे। एक और प्रोविजन है जो इम्पोर्टेंट प्रोविजन है, जो खास करके टीचर्स जो हमारे हैं, टीचर्स के लिए ये प्रोविजन हमने रखी है, वो ये है कि टेम्पररी रजिस्ट्रेशन की बहुत ज्यादा डिमांड थी, क्योंकि जैसा पूर्व में जो सीसीएम थी उनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेने के बाद सेंट्रल के रजिस्ट्रेशन के नाम से हिंदुस्तान भर में कहीं भी हम चिकित्सा कर सकते हैं, लेकिन 1 जून 2021 को भारत सरकार आयुष मंत्रालय द्वारा एक परफॉर्मा भेजा गया हमें, और कहा गया कि ये सारी स्टेट काउंसिल्स को भेजा जाए, जब भी किसी प्रैक्टिशनर की डिटेल हमारे पास आएगी, ये रजिस्टर जो हिंदुस्तान के पढ़े लिखे वैद्य हैं, चिकित्सक हैं, उनको 12 नंबर फॉर्म में आप देंगे, 12 कॉलम वाले फॉर्म में भर के देंगे, और जो फॉरेन रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर है उनके 18 कॉलम्स हैं। तो इन कॉलम्स का जो लास्ट कॉलम है उसमें एक वर्ड आया है कि आपका एक्शन टेकन अथॉरिटी कौन होगा। अगर हमसे कोई मिसकंडक्ट हो जाता है तो उसमें हमने लगभग सभी लोगों को ये बताया है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, अपना प्राइवेट व्यवसाय करते हैं, कि जो स्टेट का रजिस्ट्रार है वो हमारा जो है एक तरह से अथॉरिटी होगा, मिसकंडक्ट अथॉरिटी। अगर हमारे से कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए वो जो है एक अथॉरिटी होगा। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पनिशमेंट कर सकता है, लेकिन उसके लिए भी पूरा जो डिटेल अपील अथॉरिटी कौन कौन है उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। तो टेम्पररी रजिस्ट्रेशन जो है उसका जो भी चिकित्सक टेम्पररी रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है, अपने मूल स्थान को, राज्य को, जहां पे उसकी रजिस्ट्रेशन हुई है, वहां अपनी रजिस्ट्रेशन एज इट इज रखते हुए, उसको कैंसिल कराने की जरूरत नहीं, दूसरे किसी भी एक राज्य में 1 साल के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। तो 1 साल के रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, ऐसे वो 10 साल तक हर साल जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। ऐसा इसलिए किया गया कि खास करके सिद्धा का और कुछ हमारे आयुर्वेद के जो चिकित्सक हैं या शिक्षक हैं, उनका ये कहना था कि जब हमारे राज्यों में नौकरियां निकलती हैं तब हमें दूसरी स्टेट में अगर हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं उसको कैंसिल कराने में बहुत समय लग जाता है, उस समय ना लगे, इसलिए आप हमें ये प्रोविजन दें। एक्ट में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है, और इसको करवाने के लिए ये टेम्पररी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लॉ डिपार्टमेंट भी मानने को तैयार नहीं था। तो उनको हमने रिप्रेजेंटेशन बताया, जब हमने स्टेक होल्डर्स के लिए डाला था तो हमारे पास इसके सिद्धा के रिप्रेजेंटेशन थे, आयुर्वेद के लोगों के नहीं थे, तो हम वो लेके गए और उनको बताया कि इस तरह से कैरियर का प्रश्न होता है, इसलिए आप ये प्रोविजन को रहने दें। तो उन्होंने इस प्रोविजन को रहने दिया, लेकिन 10 साल के बाद कोई एक स्टेट चुनना होगा जहां आपकी परमानेंट रजिस्ट्रेशन होगी। ये इसलिए किया गया कि अगर कई स्टेट्स में हम प्रैक्टिस करते हैं और वहां के रजिस्ट्रार को पता है, तो नेशनल रजिस्ट्रेशन में या रजिस्टर्ड में डुप्लीकेसी के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। उस डुप्लीकेसी को दूर करने के लिए किसी एक स्टेट में आप रजिस्टर कैंसलेशन कर सकते हैं, उसकी अलग फीस होगी,
रिन्यूअल की अलग फीस होगी, टेम्पररी रजिस्ट्रेशन की रेगुलेशन में फीस नहीं है। ये जो 3 तारीख को मीटिंग होगी, सबके कंसेंसस से, सबकी सलाह से एक निश्चित छोटी फीस निश्चित कर देंगे, क्योंकि वो अपने स्टेट में भी फीस भर करके रजिस्टर्ड होता है। तो जो भी नॉमिनल फीस होगी आज के परिप्रेक्ष्य में, वो टेम्पररी रजिस्ट्रेशन के लिए जो है फीस निश्चित कर देंगे। एक और बहुत जो बात बताने वाली है वो है कि बहुत सारे, देखिए मुझे, मैं क्षमा भी चाहूंगा हाथ जोड़ करके, मेरी बात को कोई अन्यथा ना ले। बहुत सारे ऐसे महाविद्यालय हैं जहाँ इंटर्नशिप के पैसे देने की बजाय लिए जाते हैं और विद्यार्थी को कह दिया जाता है आप जाइए कहीं भी, आप जाकर के इंटर्नशिप कर लीजिए। मैं चूंकि एक ऑटोनॉमी बॉडी में एक ऐसे पद पर हूं, मुझे ये सब बात ज्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा इसकी व्यथा होती है, दुख होता है कि इंटर्नशिप में इंटर्नी को पैसे न मिलते हुए उससे पैसा लेकर के और किसी भी दूसरी जगह जहां उसको सीखने नहीं जाना चाहिए वहां छोड़ दिया जाता है। ऐसी बहुत सारी शिकायतें आती हैं। इसलिए हमने इस रेगुलेशन में उसको बहुत डिटेल से, आशुतोष जी से मेरी रिक्वेस्ट है बता देंगे। तो इंटर्न को जो है वो पेनल्टी प्रोविजन रखी है कि जो अगर ऐसा कोई पकड़ा गया तो प्रत्यक्ष कर्मा अभ्यासी की इंटर्नशिप का जो पीरियड जब वो पकड़ा जाएगा उसको उसी समय खत्म किया जाएगा और वापस उसको पुनः नए सिरे से इंटर्नशिप शुरू करनी पड़ेगी। और कॉलेज को पर इंटर्न 5 लाख रुपए का जुर्माना होगा। अगर 10 इंटर्न ऐसे पकड़े जाते हैं तो 50 लाख रुपए जुर्माना देना होगा और इसको भी लॉ डिपार्टमेंट ने पास कर दिया है। तो ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट, हमारी बड़ी व्यथाएं हैं जिसको क्या किस स्टेज पे कहें ना कहें कुछ समझ में आता नहीं है। लेकिन इस तरह की जो बातें हैं, दूसरी एक और रिक्वेस्ट कर दूं कि जो एमडी स्टूडेंट है उनको ऐसा लगता है कि हमारी इस रजिस्ट्रेशन जो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम तो स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट नहीं है बिल्कुल भी। उनका बीएमएस पास करने के बाद रजिस्ट्रेशन होता है, वो प्रैक्टिशनर है, वो पोस्ट ग्रेजुएट की स्टडी करने जाते हैं, वो क्लिनिकल डिपार्टमेंट में काम करते हैं या क्लिनिकल डिपार्टमेंट में नहीं भी काम करते तब भी उनको एक साल की 3 बार रजिस्ट्रेशन करवानी ही होगी। ये इसमें बीइंग चिकित्सक वो उसमें आ जाते हैं, लेकिन जो हमारा पोस्ट ग्रेजुएट रेगुलेशन बनेगा उसमें क्लियर कट ये जो इंस्ट्रक्शन है आ जाएगी। तो इसलिए पीजी स्टूडेंट जहां पर भी कुछ, सर ये एक बड़ा सिंपल सा फंडा है कि आप जहां भी रोगी देखते हैं आप वहां रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अगर आप बाहर रजिस्टर्ड नहीं है और तो आप वहां के लिए फेक हैं, आप उस स्टेट के आप जो हैं चिकित्सक नहीं कहलवा सकते। और अक्सर ये देखा जाता है, हम भी एमडी स्टूडेंट रहे हैं, तो हमारे जो गाइड होते हैं, टीचर होते हैं, फुल फ्लेज जो है, क्योंकि हमारी पोस्ट जो है क्लिनिकल रजिस्ट्रार होती है, हाउस सर्जन होती है, इस तरह की हमें जो है सीनियर क्लिनिकल रजिस्ट्रार कह देते हैं। तो जब हम पेशेंट को देखना होता है तो हमारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, लेकिन पेशेंट देखने की अगर हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए तो हमें रजिस्टर्ड होना ही पड़ेगा उस स्टेट में जहां हम पेशेंट देख रहे हैं। तो इसलिए पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट भी इससे जो है बाहर नहीं है, तो पीजी स्टूडेंट्स को भी टेम्पररी रजिस्ट्रेशन की जो है जरूरत बहुत पड़ेगी। इस तरह से इसमें जो है रिन्यूअल की मैंने जैसे आपको बता दी है। और दूसरा एक बताएं कि जो रजिस्ट्रेशन के लिए जो रजिस्ट्रार के दफ्तर जाना है और अगर हम एक जगह से दूसरी जगह अपने आप को रिन्यू करवाना चाहते हैं या एक जगह से दूसरी जगह टेम्पररी कराना चाहते हैं, तो इसके लिए नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन द्वारा उन्होंने अपना एक पोर्टल बना दिया है, जिसके अंदर जितने भी हिंदुस्तान की काउंसिल्स हैं उन काउंसिल्स को भी हमने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जोड़ लेना है। और पब्लिक डोमेन में वो जो एक्ट है, एक्ट की जो धारा है 31, उसमें लिखा है कि आप जो है पब्लिक डोमेन में जो है सारे प्रैक्टिशनर्स की डिटेल दोगे, जिससे लोग जिस प्रैक्टिशनर से चिकित्सा करवाना चाहें वह करवा सकते हैं, या ये देखना चाहें कि रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर है या नहीं है, ये भी कर सकते हैं। दूसरा तीसरा, अगर उसने कोई अनएथिकल काम किया है या मिसकंडक्ट किया है तो उसके लिए क्या प्रोविजन होनी चाहिए, वो सारी चीजें जो हैं विद इन मंथ और मैक्सिमम विद इन 1.5 मंथ जो है ये सारा कुछ हो जाएगा। और लोग घर बैठ करके अपनी रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवा सकेंगे, परमानेंट करवा सकेंगे और टेम्पररी रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। ये सारा जो है सिस्टम बन चुका है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी बाकी है। ये 2 अप्रैल को उसकी जो है स्टेक होल्डर्स के सारे रजिस्ट्रार्स की जो बाइसेक्स की मैनेजर है उसके साथ एक मीटिंग करा करके फाइनल स्टेज में इसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर देंगे। तो हमारे जो चिकित्सक हैं, ये सब प्रैक्टिशनर है, उनको
किसी भी रजिस्ट्रेशन बोर्ड में जाने की जरूरत नहीं होगी। और ये भी मैं आपको बताता हूं कि हमारे चेयरमैन साहब ने निश्चित किया कि अगर कोई काउंसिल बहुत कमजोर है तो उसका सेटअप भी नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन करके देगा। वैसे तो मैंने 5-7 काउंसिल्स को विजिट किया है, इनके पास बड़ा पैसा है, सब बहुत अच्छा काम ये करते हैं, तो अपना अपना सेटअप करेंगे। लेकिन कोई भी ऐसी बहुत सारी ऐसी हो सकता है काउंसिल हो कि जहाँ पैसा ना हो, तो उनको सेटअप करने के लिए हम पूरी की पूरी सहयोग करेंगे। और हमारी जो नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ऐसी 12 स्टेट्स हैं जहाँ पे हमारी काउंसिल्स नहीं है, तो ये भी एक मैंडेट है कि 3 साल में काउंसिल्स इस्टेब्लिश होनी चाहिए। तो अब जो है त्रिपुरा में, मिजोरम में जो है काउंसिल्स 2 जगह इस्टेब्लिश हो गई है, और 9 जगह काउंसिल्स का जो काम है इस्टेब्लिशमेंट का, वो या तो नोटिफिकेशन के लिए हायर अथॉरिटीज के पास पड़ा है, या वो जो है रेक्टिफिकेशन के लिए लॉ डिपार्टमेंट के पास है, तो वो भी जल्दी मिल जाएगी। तो हमारा कोई भी व्यक्ति, देखिए कि लक्षद्वीप का अंदर जो आयुष चिकित्सक काम कर रहे हैं, मेरी कल ही बात हुई, उनको केरला से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, जबकि लक्षद्वीप यूटी है, यूटी की अपनी जो है काउंसिल होनी ही चाहिए। और उन्होंने कहा है कि सर हम इसको जल्दी बना लेंगे, और डीओ लेटर हम जो है वहां के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को या एडमिनिस्ट्रेटर को रेगुलर भेज रहे हैं। तो इसके अलावा इसमें जो एक और प्रोविजन है, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, वो है कि राइट एंड प्रिविलेजेस ऑफ द प्रैक्टिशनर। देखिए आपको सारे राइट हैं, आप जो पढ़ेंगे, इसमें एक लाइन हमने लिख दी है कि जो भी हमारे एमएससी मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन जो हमने नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ने बनाए हैं वो, और मिनिमम स्टैंडर्ड रेगुलेशन जो बना है वो, एमएसआर जो पढ़ेगा, सिलेबस करिकुलम जो पढ़ेंगे एमएससी और बोर्ड ऑफ आयुर्वेदा के बनाए हुए, उसमें जो जो पढ़ेंगे उसकी वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसको उस प्रैक्टिस के लिए जो है वो कोई भी कुछ मना नहीं कर सकता। और गवर्नमेंट में जो अपॉइंटमेंट्स है, एज ए सर्जन भी हो सकती है, एज ए फिजिशियन भी हो सकती है, हम फिटनेस सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं, इलनेस सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं, हम एविडेंस भी कोर्ट में जाकर के दे सकते हैं। हमारे एविडेंस एज सच दूसरी पैथी जितने ही इंपॉर्टेंट होंगे और उनको एक्सेप्ट किया जाएगा, क्योंकि रेगुलेशन में प्रोविजन है। ऐसे ही पोस्टमार्टम भी कर सकते हैं। और यहाँ तक हमने तो इसमें लिख दिया कि डिसेबिलिटी एक्ट के तहत आप जो है परसेंटेज भी निश्चित कर सकते हैं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि उसको करने से पहले जो एक्ट 2016 है दिव्यांगों के लिए, उसको पढ़ लें। हमने काम जो भी हम कर रहे हैं, हमने सारी प्रोविजंस इसमें रख दी हैं, 1-2 चीजों को छोड़ करके। और इसमें ये भी बड़ा क्लियर और स्पष्ट लिख दिया है कि हर तरह की मॉडर्न एडवांसेस, मॉडर्न सिस्टम फॉर इसके लिए डायग्नोस्टिक पर्पस उसको हम यूज कर सकते हैं। वो सब सिलेबस में मेरे ख्याल सारे इंस्ट्रूमेंट, सारी मशीनरी और जितनी भी चीजें हम पढ़ते हैं उन सबका हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। लेकिन एक चीज के लिए फिर निवेदन कर दूंगा कि इनमें से पीडीएनटी एक्ट, इसके बारे में थोड़ा सचेत रहें। ये अभी इसकी जो डिस्कशन है इंटर मिनिस्ट्रियल चलती रहती है, तो इसके ऊपर भी काम चल रहा है, क्योंकि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट भी जो है जिस स्टेट्स में नहीं लागू है वो भी जल्दी ही आयुर्वेद का जो पूरा पक्ष है वो पूरा बन चुका है, और बन करके उसको उन्होंने एक्ट को अमेंड कर लिया है। अमेंड तो नहीं कहेंगे, कॉरिजेंडम निकाल लिया, क्योंकि 2010 में बना था, फिर 2019 में उसको रेक्टिफाई किया गया। अब आयुर्वेद का जो पोर्शन है उसमें अच्छे से इंक्लूड बना करके भेजा हुआ है। तो उसमें भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं। उसमें WHO से जितने भी डायग्नोस्टिक टूल्स हैं हमने सारे उसमें डाल दिए हैं। और इस एक्ट में हमने प्रोविजन कर दी है क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की, क्योंकि हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं इनकी रजिस्ट्रेशन की बहुत सारी स्टेट्स में प्रॉब्लम आती है कि आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, आपको गवर्नमेंट के किसी इंस्टीट्यूशन से एनओसी लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम भी मेडिकल प्रोफेशन के लोग हैं, तो हमें भी जो है रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। बिजनेस एक्ट में अगर प्राइवेट लोग हैं, बिजनेस एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, या सिविल सर्जन के यहाँ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के यहाँ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। गवर्नमेंट का जो भी इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे हॉस्पिटल्स का रजिस्ट्रेशन होता है, इंस्टीट्यूशन का होता है, सेंटर्स का होता है, डे केयर सेंटर्स का होता है, वहां सब जगह ISM प्रैक्टिशनर्स के इंस्टीट्यूशंस का भी जो है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो उसकी भी जो प्रोविजन है इसमें कर दी है। तो इन सारी प्रोविजंस के साथ साथ एक हमने इसमें लिख दिया है कि आप जो है अपनी प्रैक्टिस में टेलीमेडिसिन का भी जो है यूज कर सकते हैं। और इमरजेंसी में किसी भी प्रकार की मेडिसिन को आप यूज कर सकते हैं, बड़ा स्पष्ट लिखा है।
हमने एज सच इसलिए इस शब्द को लिखा है कि कई बार हमारे को चिकित्सा करते समय ऐसी कोई दुविधा आ जाती है कि हमने ये दवाई दी है और उसके ऊपर बाद में देखिए, एक ना बहुत सारे लोगों को शायद पता होगा, ईपीआर होता है, इमरजेंसी पुलिस रिपोर्ट, जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, अगर विद इन 24 आवर पेशेंट मर जाए तो ईपीआर, इमरजेंसी पुलिस रिपोर्ट करानी पड़ती है। ईपीआर के दौरान पंचनामा होने के पश्चात पेशेंट का पोस्टमार्टम होता है और ज्यूरी को उसकी रिपोर्ट जाती है। उसमें वो देखते हैं कि डॉक्टर की नेग्लिजेंसी है या नहीं है। वो ये बिल्कुल देखते नहीं, पूछते नहीं कि आप ये दवाई नहीं दे सकते थे, दे सकते थे। पेशेंट को सेव करना चाहिए, इसलिए आपने जो दवाई से पेशेंट बच सकता है वो आपको देनी चाहिए थी। इस तरह की प्रोविजन जो है बहुत बार देखने मिलती है। ईपीआर का मुझे बड़ा अच्छा अनुभव है। जब मैं बॉम्बे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में काम करता था तो इसका मुझे भी बड़ा कष्ट मैंने सहा हुआ है। तो कहने का अभिप्राय है कि ये सारी जो तकलीफें हैं हमारे प्रैक्टिशनर को ना आए, तो हमने ये सारी चीज बातें हैं इसमें लिखी हैं। और चूंकि मैं अगर सारा ही बोल जाऊंगा तो, क्योंकि बहुत मेहनत सच में आशुतोष ने भी किया है, क्योंकि ये मेरे से ज्यादा अनुभवी हैं। ये MCIM महाराष्ट्र काउंसिल जो है उसके चेयरमैन रहे हैं 5 साल, और इन्होंने उस काउंसिल का पूरा जो नया एक्ट है वो पूरा अमेंड करवाया। पुराना 1961 एक्ट को अमेंड करके 2014 बनाया, रेगुलेशन बनाया, और बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है। तो मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूं। और मैं सच में चौधरी जी, आपने अपनी बात को पूरा कर दिया, सबसे पहले पूरा कर दिया। मैं अपने हृदय से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और इस तरह से आगे भी जो हमारी स्टेट्स के, हमारे विश्व आयुर्वेद परिषद की जो हमारे चिकित्सक हैं, उनको भी हम ऐसी स्ट्रेंथन करना चाहेंगे। तो आप जितनी बार हमें रात को 10 बजे भी जुड़ने के लिए कहोगे, 12 बजे भी जुड़ने के लिए कहोगे, तो हम आपके साथ, क्योंकि आपका तो काम है ही, आप एक कमीशन का भी काम कर रहे हैं। तो मैं पुनश्च आप सभी का, जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपके इस प्रदीर्घ अनुभवों से शोभित मंत्रमुग्ध करने वाली वाणी हमेशा से ही हम सभी छात्र, अध्यापक तथा चिकित्सकों के लिए अत्यंत लाभकारी और मार्गदर्शन पर रहेंगी। आपके प्रयासों से ही आयुर्वेद चिकित्सकों का भविष्य उज्जवल और दैदीप्यमान रहेगा। आपके मार्गदर्शन के लिए पुनश्च धन्यवाद सर। अब मैं वैद्य सुरेंद्र चौधरी सर को अपना मत व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद ऐश्वर्या। अभी आदरणीय राकेश जी ने बहुत विस्तार के साथ में हम लोगों के सामने ये बात रखी है। इसी दौरान 2-3 क्वेरीज आई और वो आपके उद्बोधन के अंत तक जाते जाते स्वतः ही वो स्पष्ट हो गई। रमाकांत द्विवेदी जी का 2-3 क्वेरीज थी तो आपने उनको पूरा शांत कर दिया। 1-2 छोटी छोटी क्वेरीज हैं। एक तो ये है कि जब हमारा इंटर्न प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कराएगा तो वो जिस राज्य में पढ़ रहा है या जहां इंटर्नशिप कर रहा है वहां उसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनेगा। उसके बाद में वो पीजी करने के लिए अन्य राज्य में अगर चला जाता है तो क्या वो ट्रांसफर होगा या उसको नए सिरे से उस राज्य में रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा? इसकी एक क्वेरी है। संक्षेप में आपसे चाहेंगे कि अगर उचित सर, लगे जो तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है वो केवल इंटर्न्स के लिए है। जब पीजी करने जाता है व्यक्ति तो उसको परमानेंट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। विदाउट परमानेंट रजिस्ट्रेशन पीजी नहीं कर सकता। इसलिए शॉर्ट में इतना ही मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उसको वहां जाकर के टेम्पररी, अगर वो उस स्टेट से बिलोंग नहीं करता, टेम्पररी 1-1 साल के लिए 3 बार रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जी धन्यवाद भाई साहब। दूसरा ये था कि अभी एक क्वेरी ये भी आई है कि जो आपने बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज की कुछ डिग्रीज को अमान्य घोषित किया, और मुझे अच्छे से याद है कि उत्तर प्रदेश में उस आदेश के बाद लगभग 32,000 चिकित्सकों को डी रजिस्टर किया गया। शायद सबसे बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश में थी, और यही वजह है कि आज आपके पास जो संख्या उत्तर प्रदेश की जा रही है उसी के कारण है। इतना बड़ा राज्य होने के बावजूद भी यहाँ 35-40 हजार ही रजिस्टर्ड चिकित्सक हैं। लेकिन अभी भी क्वेरी ये आ रही है कि कई राज्यों में अभी भी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के कुछ लोग रजिस्टर्ड हैं। तो क्या उनके लिए भी कोई बोर्ड ने इस तरीके का प्रोविजन रखा है कि जो उनको आइडेंटिफाई करके और डी रजिस्टर किया जा सके?
सर मैं इसके ऊपर एक उदाहरण ही सिर्फ दूंगा आपको, क्योंकि ये कुछ ऐसे विषय हैं कि इसकी चर्चा सामूहिक रूप से न की जाए। हरियाणा में 26,000 प्रैक्टिशनर थे, आज केवल 9,000 रह गए। जी जी इसलिए चौधरी जी इस विषय में बहुत सारा काम चल रहा है। मुझे तो जी कभी कभी ऐसा लगता है कि हम जो 4,55,000 हैं, हम कहीं बहुत कम ना रह जाएं, क्योंकि जब मैं आया था तो 12 लाख की संख्या मुझे बताई गई थी, और जब उसको स्क्रूटनाइज किया तो वो 7 लाख थी। उसके बाद जैसा आपने कहा, जब इन सब चीजों को छेड़ा तो अब वो 4,55,000 है अभी। लेकिन आपका कहना बहुत सही है, मैं राज्यों के नाम नहीं ले सकता। अभी मैं लेटेस्ट 2 राज्यों में जाके आया हूँ, जहाँ की भी स्थिति, वहां की स्थिति भी जैसा आप बता रहे हैं वैसी ही है, और उसको संज्ञान में लेकर के वहां के ब्यूरोक्रेट्स को, आईएएस ऑफिसर, दोनों राज्यों के आईएएस ऑफिसर्स के साथ मीटिंग करके उनके संज्ञान में ला दिया है, और जल्दी ये भी कार्रवाई पूर्ण हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। यहाँ मैं प्रसंगवश वो संदर्भ दूंगा जो अभी 13 तारीख की आपने बैठक का जिक्र किया, जिसमें एनसीआईएसएम के चेयरमैन माननीय चेयरमैन साहब ने, जयंत जी ने, इसके लिए जो लाइन रखी है वो मैंने नोट की थी एज इट इज, और आपने और आशुतोष जी ने उसको सेकंड किया कि सबसे बड़ा दुख एनसीआईएसएम के जो आज के पदाधिकारी हैं, चेयरमैन हैं, बोर्ड के प्रेसिडेंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं अच्छे चिकित्सक भी रहे हैं। तो जब हमारे चिकित्सक के साथ अन्याय होता है या किसी कोर्ट में उसको सजा होती है, या अन्य विधा का कोई नोडल ऑफिसर के नाम से उसकी क्लिनिक पे जाकर उसकी बेइज्जती करता है, तो आप लोगों ने इसमें इस चीज का भरसक प्रयत्न किया है कि एक एक शब्द जो है वो लीगल परिभाषा के अंदर डाल के एक बहुत बड़ा उपकार अपने प्रैक्टिशनर्स पर आप लोगों ने किया है, और ये निश्चित रूप से हम सभी प्रैक्टिशनर्स के लिए आई ओपनिंग है आज का सेशन। आपके शब्दों के लिए बहुत बहुत आपका आभार। ऐश्वर्या जी। मेरा एक प्रश्न है चौधरी जी, आदरणीय राकेश जी से। जी जैसे, हाँ, आदरणीय राकेश जी नमस्कार। नमस्ते सर, नमस्ते। जैसे बिहार में अभी एक्ट 1951 ये प्रभावी है, और जी। इस बीच में यहाँ के रजिस्ट्रार ने 13 प्रकार के शुल्क बढ़ाते हुए 2019 में, और फिर पुनर्पंजीयन की व्यवस्था की। तो बिहार में इसके विरुद्ध लोगों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की, और उच्च न्यायालय ने यह पुनर्पंजीयन की व्यवस्था को एक्ट 1951 के सरवाइव करते हुए अमान्य कर दिया, और यह जो यहाँ के रजिस्ट्रार द्वारा यह निर्णय लिया गया था उसे निरस्त कर दिया। अब इस परिप्रेक्ष्य में उसका क्या होगा, एक बात। दूसरी बात कि जब इंटर्नशिप के बाद परीक्षा देने के पश्चात उन्हें नियमित रजिस्ट्रेशन प्राप्त होगा, इसी परिप्रेक्ष्य में आधुनिक चिकित्सा पद्धति में मामला कोर्ट में है और कोर्ट ने उस पर स्थगन दिया है, तो क्या हमारा जो यह निर्णय आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में है उसे थोड़ी प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए थी? इन 2 प्रश्नों का जवाब आपसे अपेक्षित है। पहले प्रश्न का उत्तर यह है कि बिहार का जो रजिस्ट्रेशन बोर्ड है, उसकी अपनी एक्ट की जो है शक्तियां होती हैं। वो आपने जैसा बताया हाई कोर्ट में है, तो ठीक है, उसने जो भी किया हाई कोर्ट का निर्णय है, स्टेट के इम्प्लीमेंट करना है नहीं करना है। लेकिन एक यूनिफॉर्मिटी जो है फीस स्ट्रक्चर की, लॉ डिपार्टमेंट ने हमसे मांगी थी कि पूरे हिंदुस्तान भर में आपके फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो तमिलनाडु स्टेट में केवल 500 रुपए फीस थी, और कोई एक स्टेट है जहां 10,000 रुपए फीस है रजिस्ट्रेशन की, और बहुत सारी स्टेट ऐसी हैं जहां 5,000 है, 3,000 है। तो लॉ डिपार्टमेंट को हमने सारी स्टेट स्ट्रक्चर की फीस जो है दे दी, तो उन्होंने 3 चीजों की फीस निश्चित कर दी।
परमानेंट रजिस्ट्रेशन जो है वो 5,000 रुपये, रिन्यूअल की 3,000 रुपये और कैंसिलेशन की जो है शायद 2,000 रुपये, ऐसी इसमें लिख के रेगुलेशन में लिख के आई है। और जो ये रेगुलेशन है, क्योंकि भारत सरकार का रेगुलेशन है और भारत सरकार की ये गैजेट नोटिफाई है, इसलिए सारी स्टेट्स के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। वो देर सवेर जो है स्टेट जो है वो उसका जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसको ये इम्प्लीमेंट करना ही होता है। और बिहार एक विशेष राज्य है कि जिसने आज तक हमें प्रैक्टिशनर्स का भी पूरा डिटेल नहीं भेजा है। मैं इन सब बातों की यहाँ चर्चा, क्योंकि मैं कोई नेगेटिव बात किसी के लिए बोलना नहीं चाहता, ना मुझे बोलनी भी नहीं चाहिए, मुझे शोभा नहीं देगा। दूसरी बात कि किस विधा के लिए लोग हाई कोर्ट में गए हैं कि परीक्षा हो ना हो, इसके लिए हमें कोई इंतजार करने की जरूरत नहीं। हमारे विरुद्ध कोई भी हाई कोर्ट में गया नहीं, नो डाउट। नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन को बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव मिले हैं, और जो नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम मेडिसिन और नेशनल मेडिकल काउंसिल की 3 मीटिंग्स हुई हैं, जिसमें जो नेशनल मेडिकल काउंसिल है, कमीशन है, नेशनल मेडिकल कमीशन है, उससे हम पूर्ण रूप से डिफर करते थे कि आपका परीक्षा लेने का ढंग जो है वो परीक्षा लेने का ढंग हमें मान्य नहीं है। हम जिस तरह से परीक्षा लेंगे ये नियमानुसार है, ये एज पर द यूजीसी गाइडलाइन है। तो उसके बावजूद कोर्ट में अगर कोई इस परीक्षा के संबंध में जाएगा, जहां तक मैं समझता हूँ ऑनरेबल कोर्ट कोई भी निर्णय दे सकती है, तो वो शहर कमीशन के विरोध में निर्णय नहीं होगा। तो कमीशन ने बहुत मेहनत करके नेशनल एग्जिट टेस्ट का भी सारा जो है विधान बनाया है। धन्यवाद जी। धन्यवाद सर। अब मैं वैद्य वायस मलिक सर से अनुरोध करती हूँ कि आज के दूसरे सम्माननीय वक्ता वैद्य आशुतोष गुप्ता सर का परिचय उपस्थित करें। धन्यवाद ऐश्वर्या जी। We feel so much pleasure and proud to introduce our guest, Dr. Ashutosh Satish Ji Gupta, MD Ayurved, Coordinator, Board of Ethics and Registration, NCISM, former President, Maharashtra Council of Indian Medicine, Senate Member, Maharashtra University of Health Science, Nasik. Dr. Ashutosh Ji has been very actively involved in various students' rights and has successfully led many medical student movements and agitation to the victory. He has been very actively involved in the movement against bogus doctors across the state of Maharashtra, and he is in the front part of all these activities involving fight for rights of the Ayurveda graduates at all levels. So we feel proud and invite Dr. आशुतोष सतीश गुप्ता जी, जो अपने आप में लगता है बहुत जीवट व्यक्तित्व रखते हैं, इतना संघर्ष में उनका कार्य रहा है। आपका स्वागत है, प्लीज डॉक्टर आशुतोष। धन्यवाद सर। उपस्थित श्रद्धेय योगेश जी, आदरणीय राकेश जी, गोविंद जी, सुरेंद्र जी, गोपाल जी, महेश जी, शिवादित्य जी और सभी यहाँ उपस्थित चिकित्सकगण। राकेश जी ने वैसे तो पूरे रेगुलेशन का निचोड़ जो है वो अपने वक्तव्य में किया है, लेकिन जैसे कि राकेश जी ने मुझे बताया कि इसके कुछ सूक्ष्म बिंदुओं पे मैं प्रकाश डालूं, तो वैसा मैं प्रयास करता हूं। और सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जब मुझे ये दायित्व सौंपा गया बोर्ड की ओर से, राकेश जी की ओर से, अपने सभापति जयंत राव जी की ओर से, तो हर मीटिंग के पहले और अंत में एक वाक्य पक्का रहता था कि देखो भाई, ये रेगुलेशन तो बना रहे हैं, लेकिन इसका लाभ अपने सब चिकित्सकों को होना चाहिए। और शाम में जब मीटिंग समाप्त होती थी तो इसमें सोच लेना कि चिकित्सकों के लिए कुछ हानिकारक तो नहीं है ना, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला सब चीजें इसमें होनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि उस अपेक्षा को पूर्ण करने वाला यह रेगुलेशन यहाँ पर बना है। इसके सेक्शन 2B में जो डेफिनेशन कही गई है जैसे, और उसमें सभी 8 विधाओं की मॉडर्न मेडिसिन में या एलोपैथी में जो कुछ अंग्रेजी में लिखा जाता है, तो वैसे भी
आयुर्वेद में क्या लिखा है वो लिखा है, उसके साथ अंतिम वाक्य जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अष्टांग आयुर्वेदा के 8 अंगों को डिफाइन करने के बाद, supplemented by such modern advances, scientific and technological development in various branches of science like physics, chemistry, biology, and any such other sciences applicable to make medical field from time to time. इसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि मॉडर्न साइंस जो है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसके विकास के कारण जो कोई उन्नति होती है, इस सभी चीजों का इस्तेमाल करने की शक्ति आयुर्वेद के सभी चिकित्सकों को रहेगी, ये इस डेफिनेशन से क्लियर किया गया है। कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन के बारे में भी बहुत बात की गई। तो कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन के जो क्रेडिट पॉइंट है, ये प्री अप्रूव्ड होंगे कमीशन, बोर्ड और स्टेट काउंसिल के द्वारा। तो कोई भी सीएमई अरेंज कर रहा है और क्रेडिट पॉइंट बांट रहा है, ऐसे नहीं होगा। कहीं जगह पे कई लोग इसकी दुकानदारी जो करते थे वो नहीं होगा। तो प्री अप्रूवल इसका लेना पड़ेगा, और प्री अप्रूवल लेने के बाद भी हमारे कमीशन के, काउंसिल के, बोर्ड के निरीक्षक वहां पर जाकर सीएमई जिस प्रकार बताई गई थी उस प्रकार हुई या नहीं, कितने चिकित्सकों ने उसको अटेंड किया, ये सब चीजों की जानकारी लेकर, उसे खुद देखकर फिर सीएमई के क्रेडिट पॉइंट जो है वो अलोकेट किए जाएंगे। उसके बाद में बहुत बार ऐसा होता है कि चिकित्सक को, मैं पेशेंट का रिलेटिव हूं और इस नाते से बहुत तकलीफ कई जगह दी जाती है, तो पेशेंट का रिलेटिव कौन रहेगा इसको भी यहाँ डिफाइन किया गया है। और चिकित्सक के बारे में कई बार ऐसा होता है कि आप रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हो क्या, तो सर ने बताया कि डेफिनेशन में ये तो लिखा है, उसके साथ ही कुछ संज्ञाएं चिकित्सक के लिए जो इस्तेमाल की जाती है, जैसे लीगली क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या ड्यूली क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर, इसका भी उल्लेख जो है इस अपने रेगुलेशन में बहुत स्पष्टता के साथ किया गया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ऐसी है कि जब हमारा रजिस्ट्रेशन होता है या हमारा कैंसलेशन होता है या कभी हमारा ट्रांसफर होता है, हम स्टेट चेंज कर लेते हैं, तो इस बात का भी पूरी जानकारी नेशनल रजिस्टर को रियल टाइम बेसिस पे ये होने वाली है। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात इस रेगुलेशन में है। रिन्यूअल का जो विषय बताया गया है, रिन्यूअल के समय 50 क्रेडिट पॉइंट लेना जैसे आवश्यक है, वैसे ही 70 साल के ऊपर जिन चिकित्सकों की उम्र पूरी हो गई है, इनको कोई भी शुल्क रिन्यूअल के लिए नहीं लगेगा और सीएमई के क्रेडिट पॉइंट भी इनको नहीं लगेंगे, लेकिन उनको लाइव सर्टिफिकेट जो है वो जरूर देना पड़ेगा। और वो देने के बाद उनका रजिस्ट्रेशन जो है कंटिन्यू रहेगा, निःशुल्क कंटिन्यू रहेगा, विदाउट सीएमई कंटिन्यू रहेगा। यह भी बात जो ज्येष्ठ चिकित्सक है उनके लिए बहुत आवश्यक है। उसके बाद में हम अगर स्टेट मेडिकल काउंसिल के द्वारा ली गई किसी भी डिसिप्लिनरी एक्शन के विषय में खुश नहीं है, हमें अन्याय हुआ ऐसा लगता है, तो बोर्ड की तरफ हम सेकंड अपील उसका कर सकते हैं। और बोर्ड के भी निर्णय से अगर हम खुश नहीं है तो कमीशन की तरफ अपील कर सकते हैं। तो ये अपील वाली जो सिस्टम है यह भी यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसे कि राकेश जी ने बताया, राइट ऑफ प्रैक्टिशनर्स, तो इसमें मेडिकल प्रैक्टिशनर को वैद्य लगा सकते हैं, डॉक्टर लगा सकते हैं, हकीम लगा सकते हैं, ये भी लिखा है। उसके बाद में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि कानून के तहत, कोई भी कानून के तहत कोई भी सर्टिफिकेट अगर देना है तो वो सर्टिफिकेट साइन करने का अधिकार इस चिकित्सक का है। जब हमारे सब इस अधिकारों की बात होती है तो कर्तव्य की भी बात करना बहुत जरूरी मुझे लगता है और आवश्यक भी है। मेरा सभी चिकित्सकों से करबद्ध निवेदन है कि कृपया आप कोई भी फिटनेस, इलनेस सर्टिफिकेट देते समय जिसे सर्टिफिकेट दिया गया है उसका डाटा हमारे पास रखे। कोई इन्वेस्टिगेशंस अगर है तो वो हमारे पास रखे, या उसका केस पेपर बना के रखे, उसका आधार कार्ड बना के रखे। क्योंकि ऐसी सब सर्टिफिकेट कई बार लीगल मामलों में अटक जाते हैं
कानूनी मामलों में अटक जाते हैं। और मुझे आपको एक चीज बताना आवश्यक लगता है कि मुंबई में ऐसे ही कुछ लोगों ने, अपने चिकित्सकों ने विश्वास पे सर्टिफिकेट दे दिया, डेथ सर्टिफिकेट, कि हमको काम है, वो तो मर गया था, फलाना है, आपको पता होगा। उसके रिलेटिव ने जिंदा आदमी के 90 लाख का इंश्योरेंस क्लेम वहां पे सेटल किया। इस प्रकार कई चीजें होती है और उन डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन दुर्भाग्यवश कैंसिल करना पड़ा। तो इसलिए हमारी जो कुछ रिकॉर्ड्स है, मेडिकल रिकॉर्ड्स है, प्रिस्क्रिप्शन के रिकॉर्ड है, केस पेपर है और सर्टिफिकेट जब हम देते हैं तो वो उस व्यक्ति को देखकर, जांच परख कर ही हम दे। यह मैं यहाँ विशेष तौर से बताना चाहता हूं। हम अपने आप को फिजिशियन, सर्जन, ये सब अपॉइंटमेंट होल्ड कर सकते हैं। ये भी एक ताकत जो है इस रेगुलेशन ने दी है। और हम क्या कर सकते हैं प्रैक्टिस में, कहाँ तक कर सकते हैं, तो इसका भी बहुत स्पष्ट उल्लेख अपने इस रेगुलेशन में आया है। और मैं ये थोड़ा पढ़ के बताता हूँ। द प्रैक्टिशनर शैल हैव द राइट टू प्रैक्टिस एनी सच टाइप ऑफ मेडिसिन to the extent of his qualification as is recognized under chapter 6 of the act, or to the extent of syllabus that is included in minimum standard of education, minimum standard of requirement, or to the extent of his training other than his qualification. अब अगर हम कोई योग्य, मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान करते हैं और कोई ट्रेनिंग लेते हैं, अधिकृत ट्रेनिंग लेते हैं, तो वो ट्रेनिंग की मर्यादा में रह के हम अपनी प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात, चिकित्सकों का कानूनी अधिकार बढ़ाने वाली बात जो है वो इस रेगुलेशन में की गई है। उसके बाद में क्लिनिकल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को यूज करने की भी जो बात है वो अपने सिलेबस और अपने ट्रेनिंग पर, हमारे एजुकेशन के अलावा कोई अधिकृत ट्रेनिंग जब हम लेते हैं तो ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बात को भी अधोरेखित करने का काम इस रेगुलेशन ने किया है। हम सर्जरी कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन सजेस्ट कर सकते हैं, इन सब बातों का भी जिक्र इस रेगुलेशन के चैप्टर 3 में आया है। और राइट टू कंडक्ट एनी सच इमरजेंसी प्रोसीजर और एडमिनिस्टर एनी सच मेडिसिन टू द पेशेंट एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी एज पार्ट ऑफ हिज ड्यूटी। तो इमरजेंसी में हम सभी उपायों से रुग्ण की जान बचाने का प्रयास करने का अधिकार जो है ये हमें दिया है। और एक महत्वपूर्ण बात पे मैं आपको एक आह्वान करना चाहता हूं कि हमने टेलीमेडिसिन का अधिकार भी इस रेगुलेशन में दिया है। लेकिन टेलीमेडिसिन का अधिकार देते समय हमारा रजिस्ट्रेशन आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में होना बहुत ही आवश्यक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने संगठन के द्वारा एबीडीएम में ज्यादा से ज्यादा चिकित्सकों का शीघ्रातिशीघ्र रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। और इस बारे में भी अपना संगठन आज जैसे विचार रेगुलेशन के बारे में किया वैसा विचार निश्चित तौर पे करेगा, यह भी अपेक्षा मुझे है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस रेगुलेशन में इतने अधिकार देने के बावजूद भी राज्य सरकारों ने और केंद्र सरकारों ने जो जो अधिकार हमारे चिकित्सकों को दिए हैं, इन अधिकारों को कहीं भी बाधा नहीं पहुंचेगी, इसका भी जिक्र चैप्टर 3 में आखिरी में किया गया है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इस विषय में है। अब दंड की जब बात आती है तो उसमें कोई फॉल्स क्वालिफिकेशन अगर अपना प्रैक्टिशनर लगाता है, जैसे आजकल वो एमडीएम कुछ निकला है, 10-20 हजार रुपए देके वो एमडीएम की फर्जी डिग्री लेके बीएमएस एमडी लोग लगाने लगे हैं। तो ऐसा कोई गलत क्वालिफिकेशन जो भारत सरकार द्वारा, नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन द्वारा रिकॉग्नाइज्ड नहीं है और वो यदि कोई चिकित्सक लगाता है तो उसको दंडित करने का प्रावधान भी जो है यह इसमें दिया गया है। इसका जो दंड है इसको स्टेट रजिस्टर से 3 महीने तक इसका सस्पेंशन और 25,000 तक जुर्माना पहली केस में। बाद में वो तीसरे बार अगर ऐसा कुछ करता है तो उसका परमानेंट कैंसलेशन जो है रजिस्ट्रेशन का, वो यहाँ से करने जाने का प्रावधान भी है। तो जैसे कि हमें अधिकार मिले हैं तो अपने कर्तव्य का भी ध्यान रखना आवश्यक है। तो ऐसे सब फर्जी काम करने से चिकित्सकों को बचने की सलाह मैं यहाँ जरूर देना चाहता हूँ। इंटर्नशिप के बारे में सर ने बताया बहुत विस्तार से, राकेश जी ने। वैसे ही एक
यहाँ प्रोविजन जो है वो ऑन पेपर टीचर के बारे में की गई है। अगर ऑन पेपर टीचर यहाँ पकड़ा गया तो इसको फर्स्ट टाइम के लिए पेनल्टी लगेगी और उसका सस्पेंशन जो है स्टेट मेडिकल रजिस्टर से 2 साल के लिए होगा और 2 साल से 5 साल तक उसका पहले गुनाह के लिए सस्पेंशन होगा। उस समय में वो अपनी प्रैक्टिस नहीं कर सकेगा और 1,50,000 जुर्माना, इसी के साथ ही 1,50,000 से 5 लाख तक का जुर्माना उस ऑन पेपर टीचर को फर्स्ट ऑफेंस के लिए देना पड़ेगा और सेकंड टाइम के लिए इसका रजिस्ट्रेशन जो है इस ऑन पेपर टीचर का ये परमानेंटली रिमूव किया जाएगा। उसके बाद में वो डॉक्टर के रूप में, चिकित्सक के रूप में प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा और 5 लाख से ज्यादा जुर्माना इस प्रैक्टिशनर को भरना पड़ेगा और अपना रजिस्ट्रेशन भी हमेशा के लिए वो उससे हाथ धो के बैठेगा। यह भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर कोई ऑन पेपर इंटर्नशिप करता है तो सच इंटर्न शैल बी पेनलाइज्ड विद सस्पेंशन ऑफ हिज प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ नॉट लेस देन 6 months एंड ऑन कंप्लीशन of suspension period such intern shall start his internship of 1 year afresh। अगर कोई इंटर्न ऑन पेपर इंटर्नशिप कर रहा है, यह ध्यान में आता है तो उसकी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन जो है तब से 6 महीने के लिए सस्पेंड हो जाएगी और उसके बाद में वो जब इंटर्नशिप शुरू करेगा तो उसको फिर से 1 साल की इंटर्नशिप जो है वो फिर से शुरू करनी पड़ेगी। मतलब मान लीजिए 9 महीने उसकी इंटर्नशिप को हो गए तो 6 महीने का उसका सस्पेंशन होगा, 9 और 6, और उसके बाद में 1 साल उसको पूरा करना पड़ेगा। तो लगभग 2-2.5 साल उसके चले जाएंगे और ऐसे ऑन पेपर इंटर्नशिप करने वाले जितने भी इंटर्न उस इंस्टीट्यूट में रहेंगे तो उस इंटर्न के हर इंटर्न के लिए 5 लाख का जुर्माना उस कॉलेज को भी भरना पड़ेगा। ऐसी कई चीजें जो है ये यहाँ पे दी गई है। मुझे ऐसा लगता है कि राकेश जी ने भी बहुत विस्तार से बताया और इसमें कई ऐसी चीजें हैं कि जो आप पढ़ें और कभी कोई क्वेरी हो तो निश्चित तौर पे आप पूछ सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आज के कार्यक्रम का फ्लायर जब मैं देख रहा था, आयुर्वेद 2047, तो अमृतकाल पूरा होते हुए 100 साल जब आजादी को रहेंगे तो आयुर्वेद को जिस शिखर पे पहुंचाने का ध्येय अपने संगठन ने लिया है, उस ध्येय को ताकत देने वाला ये रेगुलेशन है और वह ध्येय पूरा करते समय सुफल के साथ सफलतापूर्वक पूर्ण हो, इस दृष्टि से यह रेगुलेशन निश्चित तौर पे काम में आएगा, ऐसा विश्वास व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। आशुतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और निश्चित रूप से सब लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन समय की एक मर्यादा है जिसका आपने ध्यान रखा है। एक छोटा सा क्वेरी आई है कि जैसा आपने बताया कि विद ऑल एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स एंड ऑल अदर साइंस के जो फील्ड हैं, तो उसमें हमारे एक चिकित्सक ने पूछा है कि इस आधार पर क्या एक बीएमएस अपने क्लिनिक पर अल्ट्रासाउंड मशीन रख सकता है अथवा नहीं? नहीं रख सकता। पीसीपीएनडीटी एक्ट में अभी हमारा इंक्लूजन नहीं हुआ है और बीएमएस तो बिल्कुल ही नहीं रख सकता। ये इंक्लूजन होने के बाद में कोई अगर इंक्लूजन हो गया तो उसके बाद में एमएस गायनेक जो हमारा है और उसने यदि उसका ट्रेनिंग लिया है या मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन और मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ रिक्वायरमेंट में सोनोग्राफी का मशीन है और उसका ट्रेनिंग हुआ है और ये पीसीपीएनडीटी एक्ट में इंक्लूजन के बाद वो जरूर रख सकता है, सब लीगल कंप्लायंस पूर्ण करने के बाद। और वो इंक्लूजन से पहले अगर कोई रखेगा तो उस कानून की धाराओं के तहत वो दंडनीय होगा। यह बात हमको ध्यान में रखना आवश्यक। एक और छोटी क्वेरी आई है कि कई यूनिवर्सिटीज या जैसे महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ कई कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स जो हैं वो कुछ ट्रेनिंग कोर्सेज चलाते हैं, चाहे वो इमरजेंसी मेडिसिन के हों या फिर वो आईसीयू में मशीन्स ऑपरेट करने के हों या इस तरीके के। तो ऐसे और उनमें सब में बीएमएस के जो डिग्रीधारी हैं उनको भी वो एलिजिबिलिटी में डालते हैं। तो एक साधारण चिकित्सक ये कैसे जान पाएगा कि जिस कोर्स के लिए वो जा रहा है वो विधिवत रिकॉग्नाइज्ड है अथवा नहीं? नंबर 1। नंबर 2,
और अगर वो एक राज्य से विधिवत अप्रूव्ड कोर्स की ट्रेनिंग लेता है तो क्या वो ट्रेनिंग के बाद उस विधा को अन्य राज्यों में भी इस्तेमाल कर सकता है क्या? जी, पहला सवाल जो है, तो अनरिकॉग्नाइज्ड कोर्सेस ऐसे कुछ कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स दो हेतु से चला रहे हैं। पहला हेतु है कि उससे अर्थ प्राप्ति की जा सके, और दूसरा हेतु है कि पैसे देकर काम करने वाला प्रैक्टिशनर 6, 7, 8 महीने, साल भर हमको मिले। तो ऐसे कोई भी अनरिकॉग्नाइज्ड कोर्स जो नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन या किसी विश्वविद्यालय द्वारा एफिलिएटेड संलग्नित नहीं है, तो वो अनऑथराइज्ड कोर्स करके हम उस प्रकार की कौशल्य का इस्तेमाल अपने चिकित्सा में नहीं कर सकते। तो मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि जो कोर्स आप कर रहे हैं वो एनसीआईएसएम द्वारा या किसी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त है या नहीं, इसकी जानकारी पहले ले और बाद में ही ऐसे कुछ कोर्सेज जो है वो करे। दूसरी बात, इस रिकॉग्नाइज्ड कोर्स अगर हम कुछ करते हैं तो उसका देश भर इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? तो हाँ, कर सकते हैं, लेकिन हमारा स्टेट जो है जिसमें हम रजिस्टर्ड है उसमें तो पक्का कर सकते हैं, और जिन स्टेट में हमने टेम्पररी रजिस्ट्रेशन लिया है वो स्टेट में भी हम इस ज्ञान का इस्तेमाल, इस कौशल्य का इस्तेमाल करके चिकित्सा सेवा प्रदान कर सकते हैं। एक अंत में सवाल मेरी तरफ से ही है, वो एफिशिएंसी सर्टिफिकेट। आजकल हम प्रचलन में देख रहे हैं कि हमारे बहुत सारे फिजिशियंस जो हैं वो कुछ कोर्सेज चला रहे हैं, प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स कंडक्ट कर रहे हैं और वो एफिशिएंसी सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो क्या अगर मैं एक ग्रेजुएट हूँ, प्लेन ग्रेजुएट हूँ, तो क्या मैं पंचकर्म की किसी विधा में एफिशिएंसी सर्टिफिकेट दे सकता हूँ क्या? या जलोका के लिए मैं किसी को ट्रेनिंग देकर उसको सर्टिफिकेट दे सकता हूँ क्या? इस विषय में भी प्लीज आप जरूर दो शब्द कहें, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है। प्रमाणित करना यह सभी का अधिकार है, लेकिन उस प्रमाण पत्र को लीगल सैंक्टिटी तब तक नहीं रहेगी जब तक एनसीआईएसएम अपना बोर्ड और विश्वविद्यालय के द्वारा आपको इस सर्टिफाई करने के लिए एम्पावर नहीं किया जाता। और उस सर्टिफिकेट के देने के लिए जो कुछ शिक्षा प्रणाली या प्रशिक्षण का निर्धारण, ये जब तक नहीं होता और वो मान्यता प्राप्त नहीं होता, तब तक कानूनी तौर पे उस प्रमाण पत्र की कोई भी वैलिडिटी नहीं है। और मैंने जैसा कि कहा, एमडीएम जैसे कुछ कोर्सेस चल रहे हैं, कोर्सेस नहीं चल रहे, पैसे देकर सर्टिफिकेट बांटने का काम चल रहा है। ऐसा अगर सर्टिफिकेट कोई डॉक्टर लगाता है तो निश्चित तौर पे वो दंडनीय अपराध है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीजों से बचना चाहिए। हो सकता है ऐसे किसको दंड होने के बाद जो जिसने ये सर्टिफिकेट दिया उस पे भी लीगल एक्शन कुछ होने की संभावना रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे हमने बचना चाहिए। या ऐसा कोई सर्टिफिकेट दे रहा है तो इसको कहीं भी डिस्प्ले करने के लिए या अधिकार बढ़ाने के लिए यह दिया नहीं गया है, इसकी स्पष्ट सूचना उस सर्टिफिकेट पे कोई देता है तो होनी चाहिए। और अगर कोई लेता है तो इसका अपने बोर्ड पर, अपने कोई इंटरव्यू में या ऐसे जगह पर इसका प्रदर्शन करने से बचे। और जहां तक अपने पाठ्यक्रम की कार्य कक्षा है उस दायरे में रह के ही चिकित्सा सेवा प्रदान करे, यह मैं यहाँ बताना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी। आशुतोष जी, जी एक छोटा सा प्रश्न। जी आयुर्वेद एमडी पैथोलॉजिकल रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कर सकता है क्या? जी, कर सकता है, क्योंकि मॉडर्न एडवांसेस के साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के मॉडर्न एडवांसेस से हम माइक्रोबायोलॉजी सीखे हैं। और पैथोलॉजी, एमडी पैथोलॉजी जिसने किया है वो आदमी को एमडी करते समय मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन और मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ रिक्वायरमेंट में आप अगर लिस्ट देखेंगे एमडी पैथोलॉजी के लिए, तो जितने इंस्ट्रूमेंट उसमें लिखे गए हैं उन सभी का इस्तेमाल लीगली वो कर सकता है। और इस्तेमाल अगर कर सकता है, उसके लिए वो प्रशिक्षित है, तो ऐसे सभी रिपोर्ट्स पर वो स्वाक्षरी कर सकता है। यह बिल्कुल ही स्पष्ट है। और विशेष रूप में जो पीजी डॉक्टर्स हमारे हैं, इनके अधिकारों को भी बहुत अच्छी तरह स्ट्रेंथन करने का काम इस रेगुलेशन के माध्यम से हुआ है। तो निश्चित तौर पे आप ऐसे इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पे अगर आप एमडी पैथोलॉजी है आयुर्वेद में, तो निश्चित तौर पे अपनी स्वाक्षरी कर सकते हैं।
केवल एमडी पैथोलॉजी ना? जी जी जी। अन्य विषय का, जिसे काय चिकित्सा का, रोग निदान का नहीं न कर सकता है? रोग निदान का ही कर सकता है। एमडी पैथोलॉजी यानी रोग निदान। मैंने इंग्लिश में बताया, लेकिन आयुर्वेद का एमडी रोग निदान। सुप्रीम कोर्ट का एक न्याय निर्णय है, इसमें वो लिखता है कि केवल और केवल एमबीबीएस पैथोलॉजी का विशेष प्रशिक्षण जो लिया है वही कर सकता है। तो ये मुझे इसके लगता है संदर्भ कि में प्लेन एमबीबीएस या बाकी लोगों ने दिया, इसके ऊपर ये होगा मेरी आपसे। और ये रेगुलेशन आने से पहले होगा, ये रेगुलेशन आने के बाद लीगल स्टेटस चेंज हो गया है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप कृपया वो निर्णय अगर होगा आपके पास तो आप जरूर भेजें। मैं उसका अध्ययन करके आपसे निश्चित तौर पे चर्चा करके इसमें अगर कुछ करने लायक है तो निश्चित तौर पे राकेश जी के मार्गदर्शन में हम इस पे कुछ काम करेंगे। ठीक, धन्यवाद। देखिए, इतना तो जितने भी हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं, एक बात यहाँ मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि पिछले कुछ दिनों से जितने भी हमारे फिजिशियंस के कुछ भी रिजेंटमेंट रहे हैं, कुछ भी उनके ऊपर इस तरीके का लीगल इश्यूज रहा है और उन्होंने एनसीआईएसएम के बोर्ड ऑफ एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन को कोई चिट्ठी लिखी है, तो मुझे नहीं लगता कि एक दिन से ज्यादा का समय गंवाया गया हो। ऐसे कम से कम 20 उदाहरण तो मेरे सामने हैं कि कहीं सर्टिफिकेट दिया, वो मान्य नहीं हुआ, एनसीआईएसएम में लिखा गया, तो एनसीआईएसएम ने ना केवल उस फिजिशियन को वो पत्र भेजा, बल्कि जिस संस्था ने अमान्य किया उनको भी उन्होंने लिखा। तो ये हम सब लोगों के लिए एक बहुत सुखद अनुभव आजकल हम देख पा रहे हैं कि प्रोएक्टिवली हमारे बोर्ड ऑफ एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन के सारे पदाधिकारी आगे बढ़ के हमारे चिकित्सकों को प्रोत्साहन के रूप में और उनकी सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। मुझे लगता है कि काफी समय हो गया है और ये तो ऐसा सुंदर वातावरण बन रहा है कि और जितनी देर चाहे उतनी देर बैठ सकते हैं, लेकिन समय की मर्यादा को देखते हुए ऐश्वर्या जी प्लीज प्रोसीड। धन्यवाद वैद्य आशुतोष गुप्ता सर, आपके इस बहुत ही महत्वपूर्ण तथा ज्ञानवर्धन करने वाले व्याख्यान के लिए हम सभी आपके आभारी हैं। यह व्याख्यान हम सभी चिकित्सकों के लिए सदैव मार्गदर्शक रहेगा। अब मैं मैं वैद्य सुरेंद्र चौधरी एक सर। मिनट में इंटरप्ट करना चाहता हूँ। सीपीआर का कुछ किसी ने पूछा है। जी इमरजेंसी में हम सब कर सकते हैं, तो इसमें डरने की आवश्यकता नहीं। इमरजेंसी अगर है तो आप चैप्टर 3 अगर पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद सर। अब मैं वैद्य सुरेंद्र चौधरी सर से अनुरोध करती हूँ कि वह हमें नए गैजेट नोटिफिकेशन के बारे में थोड़ा और संबोधित करें। मुझे लगता है ऐश्वर्या जी विषय काफी हो गया है और इसमें केवल और केवल एक ही चीज ऐसी बची है जो मैं केवल 1 मिनट में रखना चाहूंगा। वो है हम कोड ऑफ कंडक्ट में मिसकंडक्ट का। तो वो एक मैंने लिंक भी डाला है और पूरा का पूरा गैजेट नोटिफिकेशन जो हुआ है वो भी मैंने चैट बॉक्स में डाला है। अगर लोग यहाँ देख रहे हैं तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो उस विषय पर एक अलग से ही कंडक्ट और मिसकंडक्ट जो है, यानी कि चैप्टर 4 और 5 ये दोनों कंबाइंड करके देखने की दृष्टि रखनी पड़ेगी। तो इस विषय पर अलग से एक सेशन हम लोग आगे रखेंगे और मैं आशुतोष जी और आदरणीय राकेश जी को उसमें पुनः कोशिश करेंगे कि वो हमारे बीच में रहें। तो समय बहुत अधिक हो गया है, तो मैं चाहूंगा कि इसको आप कंक्लूजन की तरफ ले जाएं। जी ऐश्वर्या जी, आप अनम्यूट। With this, we have reached the conclusion of this event. We trust that the ideas and vision provided by chief guest and guest of honor in today's event will definitely influence the principles of practice of various institutions and the various practitioners across the country. And I would now like to request Vaidya P.S. Pandey sir, Prabhari, Chikitsa Prakoshta, to present the vote of thanks. सर अनम्यूट कर लीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर।
पांडे सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम अपने विश्व आयुर्वेद परिषद का जो चैनल है उस पर कल परसों तक अपलोड कर देंगे। तो जो लोग इसको पुनः सुनना चाहें या जो आज मिस कर गए हों तो उस रिकॉर्डिंग को विश्व आयुर्वेद परिषद की यूट्यूब चैनल पे सर्च करके डाल सकते हैं। मुझे लग रहा है डॉक्टर पांडे जी का नेटवर्क, अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट कीजिए। नहीं आ रहा है। ऐश्वर्या जी, प्रोफेसर महेश व्यास जी को आप आमंत्रित कर लीजिए। जी सर, I request Professor Mahesh Vyas sir to kindly bless us with his guiding words and present the vote of thanks. नमस्कार जी, सभी को नमस्कार। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर वैद्य राकेश शर्मा जी, प्रेसिडेंट बोर्ड ऑफ एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन NCISM, और साथ में जो दूसरे वक्ता थे डॉक्टर आशुतोष गुप्ता जी, आज के इस कार्यक्रम के संयोजक वैद्य सुरेंद्र चौधरी जी, वैद्य आदर्श सी रवि जी, और इस प्रोग्राम को जिन्होंने कोऑर्डिनेट किया है वैद्य सुरेश जखुटिया जी, वैद्य प्रोफेसर PS पांडे जी, प्रोफेसर YS मलिक जी, और विश्व आयुर्वेद परिषद की जो हमारी केंद्रीय टोली है, हम सबके मार्गदर्शक प्रोफेसर वैद्य योगेश मिश्रा जी, प्रोफेसर राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर वैद्य गोविंद शुक्ल जी, और विश्व आयुर्वेद परिषद के माध्यम से आज के इस कार्यक्रम में पूरे भारतवर्ष से जुड़े हुए सभी चिकित्सक बंधु, मैं प्रोफेसर वैद्य राकेश शर्मा जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से। और आज जो रेगुलेशन के बारे में उन्होंने जानकारी दी, मुझे लगता है कि यहाँ पर जुड़े हुए 99% व्यक्तियों को इसकी जानकारी नहीं थी, और इसमें से बहुत सारे बिंदु ऐसे हैं जो सर ने बताए हैं। और प्रायः पहले जब भी रेगुलेशन बनता था तो उसमें कई बार कुछ चीजें ऐड करने के लिए बहुत रिक्वेस्ट करना पड़ता था कि वैद्यों को ध्यान में रख करके, उनकी असुविधाओं को ध्यान में रख करके आप इन चीजों को ऐड कर दीजिए, तो भी प्रायः ऐड नहीं हो पाती थी। लेकिन मुझे कहते हुए बड़ा हर्ष है कि इन्होंने हर दिन ये मेन सोचा है कि जिसके द्वारा प्रैक्टिशनर को, चिकित्सक को कभी भी कोई दिक्कत नहीं हो, उस प्रकार से उन्होंने प्रयास किया है। तो निश्चित रूप से ये रेगुलेशन जो है हर एक प्रैक्टिशनर के लिए, सभी आयुर्वेदज्ञों के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगा, और इन्होंने उसमें वो सभी चीजें डाली है जिनकी हमको आवश्यकता थी। तो मैं वैद्य राकेश शर्मा जी, जिन्होंने विश्व आयुर्वेद परिषद के अनुरोध को स्वीकार किया, रात की 9 बजे इससे जुड़े, और उन्होंने बहुत ही अच्छे शब्दों में भी, अगर आप कमेंट्स में देखें तो अधिकतम व्यक्तियों का कमेंट्स ये है कि बहुत ही सरल शब्दों में उन्होंने पूरा रेगुलेशन समझा दिया। तो एक सरल शब्दों में रेगुलेशन को हम सब तक पहुंचाने के लिए, हम सबको समझाने के लिए मैं हृदय से वैद्य राकेश शर्मा जी का आभारी हूं। और साथ ही उनके सहयोगी के रूप में आशुतोष जी ने बहुत सारी चीजें, जो सूक्ष्म बातें थी जिनको हमको समझने की आवश्यकता है, उन चीजों को भी हमारे बीच में रखा, और किस प्रकार से हमको सावधानियां रखना है, क्या क्या हमारे अधिकार हैं। और कई बार कुछ चीजें ऐसी होती थी कि जिनको हम फेस करने में बड़ी दिक्कत होती थी, तो कोर्ट में भी हम इस रेगुलेशन के माध्यम से अपनी बात को अच्छे से रख सकते हैं। तो ये निश्चित रूप से चिकित्सकों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रेगुलेशन है। तो मैं आशुतोष जी को भी, जिन्होंने न केवल यहाँ प्रेजेंटेशन किया, अपितु इस रेगुलेशन को बनाने में उनकी भी पूरी भूमिका रही, तो मैं NCISM और विशेष करके इस बोर्ड के अध्यक्ष वैद्य राकेश शर्मा जी, आशुतोष जी, दोनों को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने सभी लोगों को जो यहाँ पर जुड़े हुए उनका मार्गदर्शन किया। और साथ ही इस कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार वैद्य सुरेंद्र चौधरी जी, जो विश्व आयुर्वेद परिषद के राष्ट्रीय सचिव हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम का बड़े ही सफलतापूर्वक आयोजन किया, उसके लिए उनका भी विशेष रूप से आभार। विश्व आयुर्वेद परिषद की जो हमारी टीम है, हम सबके मार्गदर्शक, संरक्षक
प्रोफेसर वैद्य योगेश मिश्र जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर वैद्य गोविंद साय शुक्ल जी, आप दोनों का भी विशेष रूप से आभार। और आज के इस कार्यक्रम को जिन्होंने चिकित्सा प्रकोष्ठ के माध्यम से आज के इस कार्यक्रम का आयोजन किया था, तो वैद्य सुरेश जाखुटिया जी, डॉक्टर PS पांडे जी और डॉक्टर YS मलिक जी, ये तीनों की इस टीम ने खास तौर से इस कार्यक्रम के आयोजन में विशेष भूमिका निभाई। उनका भी विशेष रूप से धन्यवाद, आभार। और आज इस कार्यक्रम में जो भी व्यक्ति जुड़े, उसमें हमेशा मतलब विशारद परिषद के अभी तक जितने भी कार्यक्रम हुए, चाहे वो कुलगुरु संभाषा हो, प्राचार्य संभाषा हो या आज का ये कार्यक्रम हो, इन सब कार्यक्रमों में विशारद परिषद के व्यक्तियों को, चिकित्सकों को जोड़ने में जिनकी मुख्य भूमिका रही, वैद्य प्रोफेसर अनिल शुक्ला जी, उनका भी मैं विशेष रूप से विशारद परिषद की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। और इस कार्यक्रम को संचालित किया डॉक्टर ऐश्वर्या जी ने, उनका भी आभार। और सभी चिकित्सकों का जो इसमें जुड़े, वो जुड़े इसलिए उनको इसका बहुत ही लाभ मिला और पूरा प्रैक्टिस में हमेशा उसका लाभ उनको मिलेगा। तो उन सबको इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, उनके जुड़ने के कारण ये कार्यक्रम सफल हुआ है, इसके लिए उन सबको हार्दिक धन्यवाद। सभी को धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर। अब मैं गुरुनाम गुरु प्रोफेसर योगेश चंद्र मिश्रा सर से अनुरोध करती हूँ कि हम सभी को अपने मार्गदर्शन पूर्वक शब्दों से अनुमोदित करें। गुरु जी जुड़े तो हैं, लेकिन मुझे लगता है नेटवर्क में दिक्कत है। जी सर। महेश जी, कल्याण मंत्र के साथ आप ही पूर्ण कर दीजिए आज की सभा को। जी, तो जैसे कि हमारी परंपरा है, कल्याण मंत्र के साथ में आज के कार्यक्रम को पूर्णता करते हैं। तो सभी म्यूट रख करके ही दोहराएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि। सभी को जय श्री राम।